Good morning and welcome from the Pindi Cricket Stadium. We are here with the Kingdom Valley National T20. Balochistan is going to lock horns with Khyber Pakhtunkhwa. And this is going to be a good encounter, that's what we hope. The teams arrived some time back, warmed up, and lots of names, lots of unknowns, but great performers. It's all about the balance, it's all about the, well, that's what they say, the business end of the tournament. We are halfway through only. Things can change. Teams can pick their game up. What I like about this is a fair share of a lot of seniors and some very promising youngsters. These are the points table. Khyber Pakhtunkhwa hasn't lost a game yet, and they're looking to carry on with that momentum. Balochistan is at number 2, and these are the two sides facing each other, so we expect a great encounter. And then there are other teams following, and like I said, every team gets to play a fair share of 10 games, double league, so you have a chance to come back into the tournament. All right, let's go down there and join Shah Faisal. He'll tell us more about what the pitch looks like today. Another hot and sunny day here at the Rawalpindi Cricket Stadium, and we're in for a couple of more games of Kingdom Valley National T20 Cup here. Today's weather, the temperature is set at 29 degrees right now, and the humidity will be 62%, and it surely will go up during the day. So the pitch that we're looking at today, like you said yesterday, we had a high scoring day, and this pitch is looking similar in looks, but it's slightly more drier and probably won't have as much pace as yesterday. Certainly, we're not going to see that steepling bounce that we've seen on some of those pitches. It means that there will be plenty of runs here. But initially, the batters would need to play close to their body, and they can't play expensive strokes. But when they get the eye in, they can expand the range of strokes. We can expect some more big scores today here at the Rawalpindi Cricket Stadium. Expecting scores, that's what Shah Faisal feels, and we saw some big scores. 734 runs were scored yesterday in the two matches, and we do feel that we'll get some more runs. Let's join with Ali Yunus alongside me. Let's look at this pitch again and tell us a little more what to expect. Well, I'm expecting a good game of cricket. Balochistan is the side that has only chased down on this pitch against Sindh when they scored 142 runs, and Balochistan chased it down. And it looks like a good pitch. It's firm, it's nicely rolled up. There are a few cracks there, but they're irrelevant. The two big cracks, and it's going to be a very good game of cricket, that we're sure about it. Time for us to head down for the toss with the two captains and Marina Iqbal. It's the last morning game of Kingdom Valley National T20 Cup, and it's going to be a cracker of a game. I've got the two captains with me, Khalid Usman for KP, and for Balochistan, Yasir Shah. Next to him, we've got the match referee, Iftikhar Ahmed. Yasir, please go for the flip. Head. Heads is the call. Heads it is. Khalid, क्या करेंगे? हम बैटिंग करेंगे. सर्फिस के बारे में थोड़ा सा बताएं. वही सर्विस लग रहा है जैसे पिछले मैचों में होता रहा है, तो हम बैटिंग करेंगे और अच्छा टारगेट सेट करेंगे. अच्छा मोमेंटम नज़र आ रहा है आपकी बैटिंग लाइन में भी, बीच में एंड पे भी आपकी जो बैटर्स हैं वो आके रन्स कर रहे हैं. कोई चीज़ बेहतर करना चाहेंगे क्योंकि आज ऑपोजिशन अच्छी है? जी बिल्कुल, मिडिल ऑर्डर में थोड़ा सा हमें मसला आ रहा है, तो उसको अच्छा करेंगे इंशाल्लाह. और क्या टारगेट देख रहे हैं इस पे? 160 प्लस देख रहे हैं, इस पे तो डिपेंड कर लेंगे इंशाल्लाह. कोई चेंजेस आपकी टीम में? एक चेंज है, इसरारुल्लाह खेला है मास की जगह. चलें, ऑल द बेस्ट. थैंक यू. थैंक यू. यासिर, खुश हैं बॉलिंग करने से पहले? हाँ, डेफिनेटली अगर मैं टॉस जीतता तो मैं भी बैटिंग ही करता, लेकिन पहले शुरू के 2-3 ओवर होते हैं, लेकिन और चेस का जो प्रेशर होता है, या तो पहले 2 ओवर का प्रेशर लिया, चेस का प्रेशर लें, तो कोई मसला नहीं है, विकेट एक जैसे ही खेलेगा इंशाल्लाह. आपकी जिस तरह का लाइनअप है और टेम्परामेंट लगता है, चेस हो सकता है बेहतर आपके लिए हिसाब है तो? सर कोशिश करेंगे, हमारी बैटिंग कम्बिनेशन अच्छी बनी हुई है और हमारे पास सारे सीनियर प्लेयर्स हैं और अच्छा भी खेल रहे, परफॉर्म भी कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह चेस करेंगे. और मोराल कैसा है आज? केपी विनिंग स्ट्रीक के साथ चल रही है.
ज़बरदस्त है, सारे लड़के एंजॉय कर रहे हैं, फील्डिंग में भी, बैटिंग में, बॉलिंग में भी, और हर कोई यही चाहता है कि परफॉर्म करे, तो ज़बरदस्त चल रहा है। कोई चेंजेस आपकी साइड में? नहीं, सेम टीम खेल रही है। All the best, thank you. थैंक यू। The news from the center is that KP has won the toss and they have decided to bat first. That Balochistan is unchanged, whereas KP has made one change. Israrullah comes in, so just an added batsman, and they've left out Maz. Yeah, I think that's a good change for KP. They want to strengthen their middle order, but they've added Israrullah as an opener, so maybe we can see him play at number 3, and that is probably their weakness. And Khalid Usman at the toss also said that they want to strengthen that middle order batting lineup. They're a very formidable side, KP, very resilient side. But I have a feeling that this can be a good toss to lose for Balochistan. They will be chasing on this pitch. They have already chased down one total. Mohammad Asif, the umpire, officiating in this match. That's Yasir Shah, the captain, alongside. Very good side, this Balochistan. And on this other side, it's Saibzada Farhan with Mohammad Haris to open for KP. I was talking about that this can be a good toss to lose for Balochistan. They're a huge side. They've got big players in them, and especially that middle order. And we've been witnessing that is the key on these pitches. Teams who have played good in those middle orders are successful. And Balochistan has that strength there in their Balochistan. Bangalzai is definitely one for that. He plays at number 3, and Shan Masood playing at number 4 is such a key member of this side. A lot depends on him, and he's been in tremendous touch. Mohammad Haris, wicket-keeper batter, he will open alongside Saibzada Farhan for KP. Just 21 years of age. Good numbers. That strike rate is very impressive. 135, 250s to his name, best of 79. Saibzada Farhan, his partner. Both youngsters looking to make a mark here, and they've done well, fairly well, to open the innings for KP. You say a good toss to lose, but both the captains wanted to bat first. Yesterday, both the games were big games, high-scoring games, won by sides batting first. But that has nothing to do with the pitch. Pitch has produced 734 runs. But the thing is that just about some teams have accelerated a little late. Some have had brilliant power plays. They've lost their way somewhere. And that's also because they don't have enough firepower left in the middle order, lower middle order. Spin to win. Kashif Bhatti has been given the new ball by Yasir Shah. I'd like to see some more responsible and a longer innings from the young Haris. We've seen that he starts off well, and then he starts improvising, playing those funny shots. And literally he gives his wicket away on a nothing ball. Happened twice. Usually when he tries to play something behind the keeper, a reverse sweep, a scoop. Saibzada Farhan on strike. Match 15, and straight away KP off the mark with a single. And that's the brand of cricket KP plays. They've got so many big hitters in their side. You talk about Kamran Ghulam is probably the one who will play the sheet anchor role in that side. They've got Adil Amin in tremendous form. Amir Azmat, he's showing he's got potential, he's got talent. Then we've got Israrullah, the left-hand batter in the side too. Balochistan looking for early wickets. That's what Yasir Shah was hoping at the toss, that if they can have those first 3 overs and get a few early wickets, they will definitely be in the game. And almost, whenever he tries to play something behind the square, he just comes across as if he's giving an opportunity, living dangerously. Oh, that's an early scare. Lucky for Haris. Oh, he should have taken it. At this level, with so much of experience, he should have. And when you're looking for early wickets, you got to take the chances. The Junaid Khan was the fielder there.
expect that from somebody like Mohammad Haris. He likes playing those ramp shots, those sweep shots. He's got sometimes too many shots he attempts. Good to see the singles coming in. Let's have a look at the chance. Junaid Khan was the fielder. Short, fine leg. Dived, the timing was right. Good height, but it's outstretched. It's a strong side where he's lucky, Haris. Yeah, you're looking up to the skies. You want to do that, don't want to do that again. Down the wicket and Joe! What a catch! Bangalzai takes the catch and one miss too many. Haris this time gives it away. Wow. Another excellent catch in this tournament. This time the young Bangalzai. This has been the tournament of great catches. And another one wanted to go over that, not quite getting that elevation. He wanted to play over that fielder. And have a look at that for an effort. It is a similar sort of chance that went to Junaid Khan, but young Bangalzai taking it beautifully and ending the inning of Mohammad Haris, who could only score 1 run. It's 3 for 1 KP. Kamran Ghulam moves in. Lot will depend how he places his inning. In my opinion, this pitch will suit his style of play. Somebody who's technically correct, somebody who will take his time and then look to score runs. Because we have witnessed that these pitches, they don't allow you to come in and start hitting straight away. Good numbers. 123 the strike rate, 100, 150 to his name, best of 110. Junaid Khan will have the new ball from the commentary box end. That change worked, Kashif Bhatti, the new ball. Kashif is good, very accurate. Played a lot of cricket in the domestic circuit. Haris was dropped once by Junaid Khan. But then a delivery or two later, he gave another opportunity and Bangalzai took a brilliant catch. 3 for 1. Over number 2. Just amazing how many great catches that we have seen in this national T20. This one adding in the list. Abdul Wahid Bangalzai. It was a little too far from him to go to attempt that shot, Haris, but that's his instinct. He had to go after the bowling. That's how he plays. He attacks the bowler, put pressure on the bowler. Yesterday we saw an amazing catch from Umar Amin. Probably that is the catch of the tournament, which Umar Amin took. There have been few brilliant catches by Mohammad Ilyas. Few other youngsters. Sharoon also taking a blinder in this tournament. It's so heartening to see these youngsters giving it all. Good fitness. Just wonderful to see. So when you win the toss, bat first against a heavy batting side, there's definitely pressure on you. And how much score that you will be eyeing from here on, because we know that Balochistan is such an amazing side with so many quality batters in that side. So definitely pressure is on KP, and that we saw that in Haris' approach, that he wanted to attack and go big. Not happening. Big scores yesterday, 187, 188 batting first. Sides losing were not far away. Margin of 11 or 5 runs. Umpire Zamir Haider standing in his 82nd T20. Lots of experience for him.
his partner, Mohammad Asif. His 20th game. T20, that is. A wide first slip in position. Haven't seen much movement yet from Junaid Khan. He is pitching it up, he will. There's a time in his prime, Junaid Khan would angle the ball in. He'll be, he pitches and just straightens up rapidly into the right-hander. As that slip is being removed, that's Asad Shafiq now just asking his captain where he wants him. That's a very short gully-ish position. Kamran Ghulam does play in the air in that region. Yeah, we saw some swing yesterday. Sohail Khan getting swing, Mir Hamza getting swing, but we haven't seen it from here, from Junaid Khan as such. Yesterday, Sohail Khan started off brilliantly, but could not quite carry on for a longer period of time. He did get swing for a couple of overs, got a couple of wickets, then gave it away, and gave the match away too. No ball. Have a look here. Surely just overstepping that on that occasion. Boot is not even touching the line at any stage. So it's a free hit here now. The batsmen have crossed for a single, so you can change the position. It's putting one more fielder on the onside. Mid-wicket coming in. This might open up things for KP. This is what they're looking for early on. A no ball, a free hit. That will definitely give confidence to somebody like Saibzada Farhan. And we've witnessed that Junaid Khan, he has got this problem. This is the fourth no ball of this tournament only. And over his period of time, we've seen that problem to him. Keep running. Keep running. One is all they'll get. End of the over. 2 gone. 7 for 1. Just 1 over for Kashif Bhatti. As we see the change in bowling. Fast bowler Khurram Shahzad. I think that's the right way to go. You wanted early wickets. You brought in your race spinner. You got the wicket. Now back to your fast bowlers. You will be looking for some early swing. Khurram Shahzad. It's got a lovely action. Very Daryl Steyn-like action. 25 wickets. Economy very good also at this level. The best of 4 for 22. Good quick run there. Just to the left of Yasir Shah. Table toppers, KP and Balochistan against each other. And that's how that, well, I would say he saved runs. Although it went in the air, he took the catch, but still a good ball. A good follow-up delivery by Junaid Khan. Back foot punch. Kamran Ghulam can bat. Just a punch. Beautiful. Just the movement of the hands. That's it. The arms coming in play. Not much feet movement, but the arms, it will work for him.
And as I said, that he will like batting on a pitch. He's technically very correct. He likes to play late. That is the quality of Kamran Ghulam. A lot depends on him if KP has to go on to post a big total. Yeah, we were talking about these two table toppers. KP against Balochistan, very good side. Although Balochistan is full of superstars, but on the other hand, KP, they don't have big names in that side, but their approach, they're so resilient. Let's have a look at their most successful captain since 2019, Khalid Usman, Iftikhar Ahmed. It's KP. We expect that. Shadab Khan also in the list. Yasir Shah is also there alongside Imad Wasim. It's good. And look at that win percentage of this tournament. Yeah, Khalid Usman winning 4 out of 4. Oh, that's nicely done. Beautifully played. Off the back foot again by Kamran Ghulam, earning him second boundary of this over. That is just quality, pure quality by Kamran. Too short on that occasion. This pitch has always been a great evidence of reliable bounce, and ball does hold up in the surface a little bit, so just at a medium pace or a medium fast pace bowler at that length is going to be in trouble. It allows that extra bit of time. Oh, misfield. Come back for 2 where there was not a single run. They've given 2. Not sure if it was a bad bounce, but either way, runs given. Yeah, he's the one who recovered it. Fielder at point was Hussain Talat. That's not what you associate with somebody like him. He's normally a very good fielder, very safe fielder. Still early in the day, maybe just getting used to it, waking up, and now he's being changed. He's now moved to mid-on, and Abdul Wahid Bangalzai, the youngster, they're bringing him at that point position, the very key position. The ball travels very quickly there. You got to have your best fielder at that position. That's probably what Yasir Shah has thought, that Abdul Wahid Bangalzai is the right man there. Good ball that. Just giving it a feel outside the off stump, 18 for 1. There's definitely something about this KP side. They're always in trouble. They're always behind at some point, but they end up winning the game. Just so amazing. They play for each other. They don't have big names inside. Well, they do have, but they are for the national duty at this point. It's so tough to beat them because of their nature, the way they play cricket, the way they've gelled in together. Even somebody like Amir Azmat, he has gelled in very nicely, and he's delivering too. So probably they know the role has been assigned to him, they understand it well, and they execute it well too. That is why they're so successful. 4 wins out of this. They're the defending champions also. There's something about them. Junaid Khan into his second. Again opting for that shorter length. Gonna give away runs. 2 is what they end up with. Gonna pitch it up a little more. He's not finding that swing. But again, my point, at that pace, it won't hurt or harm or worry the batsman. Now waited a little and played it in the gap. This length, yes, as you said, it's not going to harm batters. It's not going to be something to worry. And somebody like Sahibzada Farhan, full of talent, full of aggression. He's due some runs. He hasn't come to the party yet, but this can be a good time against a big...
Umar Amin yesterday showing us how to play. He was very good. Ali Imran for Northern doing it beautifully on a pitch like this. We got to learn from each other. Zain Abbas, conventional player, technically correct. Upish, but he's played that deliberately over the circle. Power play is on, and a boundary is on. Now that's the question. For how long can you hold them back? We know what Saibzada Farhan can do. He's a destructor. Have a look at that. Outside the off stump with slower ones. Not quite timing it, but the good thing was that he played it over the fielders. Got the desired result. 24 for 1 KP. After early scare, they are recovering well. Disappointed because that's not what he was expecting. The gentle, slow delivery outside the off stump. Always asking to be hit. I thought he's some youngster fielding there. It's such a feat, let me tell you. That's excellent. Just love how these old-timers have gelled in with these youngsters. Just amazing to see. They're coming, they're just changing the roles. Although they're playing, but the more role of mentors in this side. Somebody like Sohail Tanveer yesterday for Northern. Sohail Khan for Sindh. Sarfraz for Sindh. More runs. Deep square leg will cut it off or not. Another boundary there. Timing was good. It was right. Just a bit of a struggle going on for Junaid Khan at the moment in terms of keeping the line right. This time he was on the leg stump. Easy pickings for somebody like Saibzada Farhan. A good effort by Shan Masood. Just could not quite pull the ball back. Very fit cricketer. Is in tremendous form in this tournament. Shan Masood is one of the leading run getter. Does well to slap it down with the bat. Once again, you keep seeing the lengths and the directions have been very all over the place. 29 for 1. Early wicket for Balochistan. Mohammad Haris losing his wicket for just 1 run. And now the rebuilding process. That's Saibzada Farhan on 16 and Kamran Ghulam still there. That's very important for Khyber Pakhtunkhwa that these two batters stay on and carry this inning for maybe another 8 to 10 overs. At the moment, after 4, it's 29 for 1. Teams have been careful in the power play and trying not to lose wickets. Some of them have tried to go hard at the bowling. They've succeeded at times. We look at the power play average scores. First innings been 46. Average power play score for second innings been 45. But in the last 3 days, things have changed a little bit. The power play first innings is reduced. It's gone to 43. And the average second inning power play has increased to 56. Not a massive change, but there is. Seen some high scoring games pulling this one, keeping it down, knowing there's a man, Ahmad Butt in the deep. So like yesterday, we saw how Zain Abbas attacked, saw Faizan how he attacked, but not everyone's going all great guns. And it's a deliberate effort. They're trying to keep it nice and easy. Maybe the plan is if you lose a wicket, then just try to form a partnership and see it through. Don't worry about the power play. They lost Haris. Now they're keeping it a touch quiet, but still getting that odd boundary going.
Junaid Khan's over got them 2 boundaries. Now that is a wild swing. You expose the stumps, you clear your left leg, and then you try to slog it. Is that the same Kamran Ghulam we know? Because this is not what you associate with somebody like him, who'll just heave it away for a nothing shot. He's lucky that he didn't get the edge. For a second, I thought he's nicked it. He can smile now because it has turned out in his favor. Yeah, what happens at times is when you're not getting the ball nicely onto the bat, you try to go onto a release shot. It just frustrates you, probably standing there. You want to feel the ball onto the bat. That's a wide signal, as we saw. But that's what all concentration is about. But as you just said, that it's not sort of a pitch where you'll get these sort of runs, those mid wickets, those cow corners. That's not on for this sort of pitches. Yesterday we saw Central trying it with the Clark. It didn't work out, although it did work for Faizan, but that was poor bowling by Sensai to Faizan. Bowled in his zone. Otherwise it's very difficult. If you can do it, play like this, why do you have to play shots like that when you're a conventional batter like Kamran Ghulam? You're not in the side as a pinch hitter. Your role is as a sheet anchor role. You got to hold this inning together, because if KP loses Kamran Ghulam here, it will be very difficult to post that desired result, 160 or 170 that we talk about. Because if you're not getting 160, it's going to be very difficult, because we know that what Balochistan batting side is about. Don't worry, they'll get it. Patience. Shot. And that's good fielding as well. Change of position, it's working for Hussain Talat. He was moved at that mid-on position. Probably the right position for him. As I said, he's a very safe fielder, very fit cricketer, very good all-round cricketer. The way he bowled against Northern took them by surprise. Got that big wicket off the captain, Umar Amin. He's got that habit of taking wickets. 33 for 1 is KP at the moment. Shot. Now he'll feel better. 6 to end the over, 5 gone. It's 39 for 1. Yeah, that's more like it. Better. If you're looking to play it straight, that's the way to go on a pitch like this. It's 39 for 1. अम्माद भट्ट को हाथ में इस वक्त गेंद है, क्योंकि पारण से अब दिल भर गया है दूसरे पेसर से यासिर शाह का। सुबह के वक्त जो T20 मैचेस रिकॉर्ड है अम्माद भट्ट का, वो बहुत बेहतर है। गेंद को सीम पर गिराते हैं, कई बार रुक कर आती है। अक्सर देखा गया है कि इनको विकेटें मिल जाती हैं, इसी गरज से मुतारफ कराया जा रहा है। लेकिन अभी तक इतनी अच्छी बॉलिंग हुई नहीं है बलूचिस्तान की जानिब से। बाज गेंदें शॉट रही, एक नो बॉल भी हुई, और ये शॉट जो है मैन्युफैक्चर किया, क्रीज के बाहर आए, बिल्कुल बॉलर के सर के ऊपर से वार कर दिया कामरान गुलाम ने। दिन ब दिन जिनका स्ट्राइक रेट जो है T20 क्रिकेट में वो बढ़ता जा रहा है। आज 138 का है, इनका जो करियर का स्ट्राइक रेट है वो ज़्यादा 120 के करीब रहा है, 123 है। लेकिन इस साल इसमें इजाफा हुआ है लाहौर कलंदर्स के लिए, जब
ये PSL 7 में नजर आए थे, वहां भी 1 डाउन ने बैटिंग की थी और उठाकर खेल दिया। लॉन्ग ऑन के फील्डर कट ऑफ नहीं कर सके। एक और शॉर्ट गेंद थी और आज इसी वजह से मुराद पाई नहीं बलूचिस्तान के बॉलर्स ने। उनने गेंद को बहुत ज्यादा पटका है पिच पर और उसके बाद सर को। ये बैकफुट पे दोनों बहुत अच्छे हैं, कामरान गुलाम भी, साहिबजादा फरहान, ये ढूंढते हैं इस तरह की लेंथ। और अभी तक जितनी शॉट खेली हैं वो ज़्यादा दिक्कत हुई नहीं है इन दोनों बल्लेबाजों को स्कोर करने में। बलूचिस्तान यहीं पे चूक रहा है, अच्छे एरियाज में नहीं गेंद कर पाए जिसकी वजह से रन लीक हो रहे हैं। एक विकेट हासिल ज़रूर की थी लेकिन कैपिटलाइज नहीं कर पाए उस अपॉर्चुनिटी पे मजीद। इस वक्त ऑफ साइड में 5 फील्डर मौजूद हैं, पांचों दायरे के अंदर हैं और इसके बावजूद ये शानदार चौका लगा दिया। बैकफुट पर गए, पंच किया मिड ऑफ और कवर के दरमियान और गेंद राह वाह हो गई। दोनों एंड से बाउंड्रीज आने लगी हैं। दिल का स्ट्रोक था ये, बैकफुट ड्राइव पंच। साहिबजादा फरहान ऑन द टोस खेला इन्होंने, अच्छा बाउंस मिल रहा है, बल्ले पे अच्छा आ रहा है। माद बट विकेट के दोनों तरफ रन्स दे रहे हैं और फरहान और कामरान जिस तरह की बैटिंग कर रहे हैं अभी फिलहाल कोई जवाब मौजूद नहीं है बलूचिस्तान के पास। थोड़ा आगे पिच करना पड़ेगा हार्ड लेंथ पे, ये बैकफुट पे बहुत टाइम मिल रहा है इस सरफेस पे। बैटिंग करने के लिए हालात आज बड़े सहल हैं। सुबह इससे तेज धूप निकली हुई है, गेंद बल्ले पर आ रही है इस पिंडी की पिच पर जिसकी रंगत जो है वो खासी बदली बदली लगती, ज्यादा साफ रंगत की ये पिच है। एक बार फिर गैप ढूंढ निकाला, दूसरे रन के लिए वापस पलट जाएंगे। फील्डर को दबाव में रखा हुआ है। आज शुरू इससे जान मसूद ज्यादातर इन दिनों बाउंड्रीज पर नजर आते हैं। इस टीम के नायब कप्तान हैं, अच्छी दौड़ भी लगाई, फिट क्रिकेटर हैं इस केपी की बैटिंग लाइनअप में। यासिर शाह को थोड़ा तवज्जो देनी पड़ेगी कि किस तरह रोटेट करे अपने बॉलर्स को। सैंतलत भी एक अच्छी ऑप्शन है, पिछले मैच में बहुत अच्छी बॉलिंग की, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट पिच है, यहाँ पे लेंथ बहुत मैटर करेगी। ज्यादा अच्छी गेंद नहीं थी और इस बार शान मसूद नहीं रोक सकेंगे। गेंद से वो चंद गज के फासले पर ही थे कि उन्हें अंदाजा हो गया था अंजाम का। फुल टॉस और इसे बाउंड्री को पहुंचा दिया साहबजादा ने बिला कोशिश। बहुत आसान बॉलिंग है ये, आगे पिच करना चाह रहे थे लेकिन फुल टॉस मिल गई और इसका भरपूर फायदा उठाए। बहुत बड़ा ओवर माद बट का 14 दे चुके हैं, अभी एक गेंद बाकी है, 50 रन भी केपी के मुकम्मल हो गए। मुश्किलें नजर आ रही हैं बलूचिस्तान बॉलिंग लाइनअप में। पावर प्ले इस गेंद के साथ मुकम्मल हो जाएगा और ये 50 रन की पार्टनरशिप भी फरहान और कामरान के दरमियान पूरी हुई। इसे उठाकर खेला, बिल्कुल गैर आबाद जगह पर गिरी। एक ही रन साहबजादा फरहान यहाँ पर हासिल कर सके। माद बट का पहला ओवर खासा महंगा रहा 15 रन के साथ, के बाद 54 पर 1। खैबर पख्तूनख्वा ने इस सीजन में अपना सबसे बड़ा स्कोर बनाया है। पावर प्ले में 51 रन उन्होंने बनाए। मोहम्मद हारिस के जल्दी आउट होने के बावजूद जिन्हें पहले ओवर में मिलने वाली नई जिंदगी का भी फायदा नहीं उठाया था, उनका कैच गिर गया था। जब आज उन्होंने दूसरी गेंद खेली, हुसैन तलत, इन्होंने 3 विकेटें हासिल की थी अपने पिछले स्पेल में। ऐसा परेशान किया था अपनी हरीफ टीम को। क्या आज वैसा कर सकते हैं? पावर प्ले की इब्तिदा इस ड्रॉप कैसे हुई? हारे से फिर उठाकर खेलने की कोशिश की, इस बार मंगल जई ने उन्हें मौका नहीं दिया। उसके बाद ये स्ट्रोक प्ले आप देख सकते हैं, विकेट के दोनों जानिब रन्स बनते हुए नजर आए। बॉलिंग ज्यादा अच्छी नहीं थी।
बैट्समैन ने भी अपना हुनर दिखाया, जहां जहां मौका मिला ये दिलकश तरीके से खेला ऑफ द बैक फुट साहबजादा फरहान ने। तलत ने पिछले मैच में अच्छा बाउंस का फायदा उठाया था, सरफेस पे काफी बाउंस देखने को मिला, पिच के अंदर पटक के बॉल किए थे। आज इनकी क्या हिकमत अमली होगी ये देखना जरूरी है, क्योंकि कामरान और फरहान दोनों बैकफुट के शौकीन हैं। जिस तरह का पिच देखने में आ रहा है, अच्छा आसानी टाइम कर पा रहे हैं। लेग स्टंप का गार्ड लिया साहबजादा फरहान ने, जो आज ऑफ साइड में भी खेलने मूड में है। एक बार फिर ऑफ साइड में ही खेला साहबजादा फरहान ने। और ये लेग स्टंप का इसलिए भी अब ज्यादा गार्ड लेने लगे हैं कि एलबीडब्ल्यू के भी इब्तिदा में 80 हद तक उम्मीदवार रहते थे, विकेटों के सामने कई बार फॉल ओवर कर जाते थे। इस पिच पर आज गेंद उस तरह से उछकती हुई नजर नहीं आई, जो कि इससे पहले सुबह के सेशंस में खासी काट मिलती थी, और इस शॉट में बहुत ज्यादा काट थी। कामरान गुलाम जो आज भरपूर फॉर्म में नजर आ रहे हैं, ये गेंद उनके बिल्कुल पाले में गिरी और बॉलर को सजा मिली। शानदार शॉट थी, ये हाफ वॉली मिल गई थी, बहुत अच्छा वेट ट्रांसफर किया, लाइन के थ्रू खेला, और ये दिलकश स्ट्रोक है इनका, अच्छा बैलेंस मेंटेन करते हैं। ये आई बैक लिफ्ट है, और अगर कोई यंगस्टर सीखना चाहता है तो फुल फेस ऑफ द बैट ये ड्राइव फोटोग्राफर के लिए भी बहुत कारआमद साबित होगी। कामरान गुलाम 2020-2021 के सीजन के बैटिंग हीरो थे। इन्होंने चैंपियन बनवाया कायद आजम ट्रॉफी में। कायद आजम ट्रॉफी का दरअसल इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा था, जो कि कई यशों पर मुहित था। उसके बाद T20 क्रिकेट जो है उसको भी इन्होंने अपना लिया है। लाहौर कलंदर्स ने इनकी सिलेक्शन की थी, उस वक्त बाज़ लोगों को हैरानी हुई थी कि नॉन T20 बैट्समैन उस मरहले पर समझे जाते थे, लेकिन वो जो कहते हैं ना खुद को मनवाने का हुनर मुझे आता है, मैं वो कतरा हूँ समंदर जिससे घबराता है। ये उसी तरह का ही कैरेक्टर है, खुद को मनवाया है इन्होंने, हुनर भी इनको आता है मनवाने का। कमिटमेंट बहुत है इनमें, घबराते नहीं किसी भी सिचुएशन से, और जितना भी देखा है कोई प्रेशर सिचुएशन हो उसमें से भी बासानी निकलना इनको आता है। बहुत ज़्यादा रेंज ऑफ शॉट्स नहीं है, लेकिन जितनी है वो कारआमद है। अच्छा बैकफुट पे भी खेल लेते हैं। पुल शॉट खेलने में इनको जरा सी दिक्कत हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा ने ज्यादा जो मैचेस हैं वो दोपहर के वक्त खेले। एक नया चैलेंज था जिस पर पूरा उतरी है अभी तक ये टीम, चैलेंजेस पर ये पूरा उतरती रही है अभी तक, नाकाबिल शिकस्त है। इससे पहले इन्होंने 4 मैचेस अपने जीते। आज टूर्नामेंट की सबसे ताकतवर हरीफ से इनका आमना सामना हो रहा है, उसमें भी ये खेल में अभी तक आगे रहे। शॉट बहुत ज्यादा खराब गेंद थी, और अपनी मदद आपके तहत ही ये बाउंड्री पाली। दरअसल काम आसान कर दिया था इस लाइन और लेंथ ने साहबजादा का। ये लेंथ और लाइन जो है यहाँ पे आपको बहुत रन्स मिलेंगे, सिर्फ लाइन को होल्ड करके मदद की है शॉट खेलने में, ज़्यादा मेहनत दरकार नहीं हुई। बलूचिस्तान को अपनी बॉलिंग लाइन और बॉलिंग एरिया पे तवज्जो देनी पड़ेगी। 66 पे 1 खैबर पख्तूनख्वा।
किंगडम वैली नेशनल T20 कप, आप किंगडम वैली के फेसबुक पेज पर जाइए अगर आप इनामात जीतना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग प्राइजेस हैं, अगले विनर आप भी हो सकते हैं। लेकिन देखना ये कि ये विकेट्स के ज़िम्न में अगला विनर कौन होता है। यासिर शाह अब खुद बॉलिंग करने के लिए आए हैं इस वक्त मीडिया सेंटर एंड से। फील्ड खोल दी गई, 3 फील्डर ऑन साइड में बाउंड्री पर हैं और ये अच्छी गेंद नहीं थी, बाल बाल बचे बाउंड्री से, गेंद ज्यादा स्क्वायर चली गई ऑफ द बैट। लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, डीप कवर मौजूद है, मिड विकेट, स्क्वायर लेग बिहाइंड स्क्वायर। रेगुलेशन फील्ड है यासिर शाह के लिए, लेकिन अच्छी गेंदबाजी करते आए इस टूर्नामेंट में। काफी अहम किरदार निभाया इन्होंने, एज अ लीडर भी, एज अ बॉलर भी। बड़े मुश्किल सिचुएशंस में इन्होंने आके ब्रेक थ्रू जरूर दिलवाए बलूचिस्तान को, और अभी जरूरत भी है। अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, बड़ी सुलझी हुई ये पार्टनरशिप है। अच्छी गेंदों पर भी बाउंड्रीज लगाई हैं, ज्यादातर खराब गेंदों का इंतजार किया। ईशान मसूद नायब कप्तान है, ज्यादा वक्त इन दिनों बाउंड्री पर गुजारते हैं फील्डिंग करते हुए, और उसकी एक वजह यह भी है कि यासिर शाह जो हैं ये अपने फैसले खुद कर रहे हैं कप्तानी में। अच्छी कप्तानी की है यासिर शाह ने, क्योंकि पिछले बरस जब इन्हों पाकिस्तान कप में इस टीम की बागडोर सौंपी गई थी तो फ्रॉम आउट ऑफ नोवेयर इन्होंने इस टीम को चैंपियन करवा दिया था। दूर गेंद को गिराया, लेंथ भी कम की, इसलिए शॉट सही तरह खेल नहीं सके कामरान। वेरिएशंस काफी हैं इनके पास, और ये रीड कर लिया था जल्दी के कामरान गुलाम, कदमों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हल्का गेंद किया था रीड से बाहर, समझदार बॉलर है, इतना आसान नहीं है इनको टारगेट करना। कल उमर अमीन ने अच्छी कप्तानी की थी। हम मरीना के सामने ये सवाल रखेंगे कि उन्हें सबसे ज्यादा इस कप्तान ने मुतासिर किया है यहाँ रावलपिंडी में। 68 पर 1 KP। आठ ओवर्स में यहाँ पर 6 बॉलर्स को यासिर शाह इस्तेमाल कर सके हैं। विकेट काशिफ भट्टी को मिली पहले ओवर में, और अब वही बॉलिंग करते हुए भी हमें नजर आएंगे। इसी एंड से ही इन्होंने मोहम्मद हारिस की विकेट हासिल की थी। दरअसल उस ओवर में 2 बार उन्हें गलती करने पर मजबूर किया काशिफ ने। लेफ्ट आर्म फिंगर स्पिन करते हैं। जरा सी नीचे रह गई, लेकिन क्योंकि सेट हैं साहबजादा फरहान, इसलिए कोई मुश्किल पेश आई नहीं। पहला ओवर कराया था काशिफ भट्टी से, अच्छा ओवर किया था नए बॉल के साथ, सिर्फ 3 रन दिए थे। लेकिन स्पेल के लिए बुलाया। स्पिन अटैक यहाँ पे बहुत मैटर करेगा, क्योंकि मिडिल ओवर्स में इन्हें रन रोकने पड़ेंगे। यार अच्छा गेंद था, कट करना चाह रहे थे लेकिन सीधा फील्डर के हाथ में खेल दिया। कप्तानों की बात आपने की, जाहिर है काफी फैक्टर्स आ जाते हैं कि रन बन पाएगा। यासिर शाह के पास जिस तरह की टीम है उसको अच्छा लीड कर रहे हैं, लेकिन अगर इंडिविजुअली मैं बात करूं, उमर अमीन भी जाहिर है बहुत एक्सपीरियंस कप्तान रहे हैं। सलमान अली आगा ने जिस तरह अपनी टीम को लीड किया है, रोटेशन बॉलर्स की बहुत अच्छी की है, ज़्यादा कामयाबियाँ मिल नहीं सकी, बैटिंग भी नहीं साथ दे पा रही। लेकिन उनकी एज ए यंग कैप्टन मुझे उनकी जो हिकमत अमली है वो अच्छी लगी। रिसोर्सेस कुछ कम थे, ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर भी नहीं मौजूद थे उनके पास, लेकिन जिस तरह उन्होंने जहराना कप्तानी की और जिसे कहते हैं कि स्मार्ट डिसीजंस किए,
वो मुझे ज़्यादा अच्छी लगी। बाकी एक्सपीरियंस प्लेयर्स तो ज़ाहिर है वो नज़र आती है, झलक आती है उनकी कप्तानी में, जैसे यासिर शाह हो गए, खालिद उस्मान हो गए। लेकिन यंग कैप्टन्स में से मुझे सलमान अली आगा की जिस तरह की उनकी टीम है, वो उसमें से बेस्ट निकालने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। गेंद फिर से करने पे मजबूर होंगे काशिफ भट्टी। और खैबर पख्तूनख्वा की जो बैटिंग है इसका एक खासा और भी है कि इसमें आपको कोई जो है आज से पहले तक कोई बाएं हाथ का बैट्समैन नज़र नहीं आता था मैचअप के लिए। और यहाँ पर ये मौका है, उछले ज़रूर थे लेकिन गेंद हाथ नहीं लगी। अम्माद बट काफ़ी देर तक ये लगा कि शायद कैच आउट हो जाएंगे कामरान गुलाम, क्योंकि इतनी ज़्यादा एलिवेशन के साथ फासला था नहीं। काफ़ी देर से ये इस ताक में थे कि एक बाउंड्री हासिल करें छक्के की सूरत में। बिल्कुल भी नीचे खेलने का इरादा इनका नहीं था और इतना फासला मिल गया कि फील्डर को बीट कर पाते। मिडिल हुआ नहीं लेकिन वो बैट को ज़रूर देख रहे हैं। एक और अच्छा ओवर खैबर पख्तूनख्वा के लिए जिसमें 10 रन्स काशिफ भट्टी ने दिए 9 ओवर्स के बाद 79 पर 1। अपना भट्टी इधर आ जा, इधर आ जा। शाबाश शाबाश शाजी, शाबाश शाजी। खैबर पख्तूनख्वा की इस बैटिंग लाइनअप में आज इसरारुल्लाह जो हैं ये बाएं हाथ से बैटिंग करते हैं। ये वाहिद खिलाड़ी हैं जो कि स्पेशलिस्ट बैट्समैन हैं बाएं हाथ के। ये ओपनिंग बैट्समैन हैं लेकिन देखना ये कि इनको किस नंबर पर इस्तेमाल किया जाता है। आपको ज़्यादातर आपको दाएं हाथ के बैट्समैन मिलते हैं, साहबजादा फरहान से लेकर खालिद उस्मान तक। हालांकि जो दीगर टीमें हैं उनमें लेफ्ट हैंडर्स मौजूद हैं और आज के दिन की ज़रूरत भी है T20 क्रिकेट में उन मैचअप्स के लिए। लेकिन अगर घी सीधी उंगली से निकल रहा है तो फिर क्या ज़रूरत है दूसरी तरफ देखने की। बिल्कुल, आप ज़बरदस्ती एक लेफ्ट हैंडर को अपने कॉम्बिनेशन में डाल नहीं सकते। अगर ज़रूरत है, वो यूटिलिटी प्लेयर है, आपके कॉम्बिनेशन टीम कॉम्बिनेशन के में फिट होता है तो फिर तो सही है। जैसे आज बैटिंग को थोड़ा तगड़ा किया है केपी ने। बात भी हो रही थी खालिद उस्मान से टॉस पे, वो यही कह रहे थे कि इनिशियली 2-3 ओवर हैं देखने वाले, उसके बाद बैटिंग बेहतर हो जाती है और मिडिल ओवर्स पे उनका ये कहना था कि मज़ीद बेहतर कर सकती है केपी, इसीलिए शायद बैटर को ऐड किया है आज। और दूसरी जानिब बलूचिस्तान की टीम में 4 ऐसे स्पॉट्स हैं, 4 ऐसे बैटिंग स्पॉट्स यहाँ पर लेफ्ट हैंडर आपको खेलते हुए नजर आएंगे। एक बार फिर अच्छी गेंद थी यासिर शाह की। हसीबुल्लाह बाएं हाथ से खेलते हैं, हारिस सुहेल, हुसैन तलत बाएं हाथ के बैट्समैन हैं और शान मसूद भी। इसरारुल्लाह आज सीजन में पहली बार एक्शन में नजर आएंगे। ये बाएं हाथ से बॉलिंग भी करते हैं, वो भी एक गरज होगी। आज जिस तरह लेग स्पिनर माज खान को ड्रॉप करके इनको टीम में लाया गया। सिंध में तो आपको बहुत लंबी लाइन नजर आती है लेफ्ट हैंडर्स की। आजा आजा आजा। आसिफ अफरीदी अभी भी दस्तयाब नहीं है। मुमकिन है कि मुल्तान के मरहले में वो एक बार फिर खेलते हुए नजर आए। यहाँ पर विकेट दरकार है क्योंकि ये जो पार्टनरशिप है ये अब मुश्किलात खड़ी कर रही है यासिर शाह एंड कंपनी के लिए। उठाकर खेले, गेंद खासी आगे गिर गई स्क्वायर लेग पर असद शफीक के। एपी के पास बैटिंग बहुत है, अच्छा फाउंडेशन यहाँ पे मिल गया है। बिल्कुल टो एंड पे लगा था गेंद, ये ना बाउंड्री की तरफ जा सका ना फील्डर तक कैरी किया। इस फाउंडेशन को अब यूटिलाइज करना बहुत ज़रूरी होगा। बल्लेबाज ऐसे हैं तो बड़ी हिट लगा रहे हैं। हवा में खेला और गेंद काशिफ भट्टी के हाथों से निकल गई। आज इनकी गेंद पर पहले ओवर में क्या ड्रॉप हुआ था, अब इन्होंने भी ये संगीन गलती की। गेंद इनके उल्टे हाथ की तरफ बिल्कुल नहीं थी।
क्योंकि बाएं हाथ के स्पिनर हैं। खराब क्रिकेट भाई बलूचिस्तान की जानिब से। ग्राउंड फील्डिंग भी इतनी अच्छी नहीं रही और ये कैच होना चाहिए था इस लेवल पर। 83 पर 1। शाबाश शाबाश बच्चे. On Cash, come on. Platform is set. How about that? For Khyber Pakhtunkhwa. Just the loss of 1 wicket. But this partnership has propelled to 80 of just 55 deliveries. Young Harris had another failure today, but since then these two have really picked up. Incredible stroke. It hit the gap as well. For a moment it looked like it'll just be a couple of runs, but he timed it very, very sweetly off the back foot. Get that much of power. That was incredibly played. Inching closer to that half century. Sabzada Farhan moves to 46. Oh, is that taken? Is that taken? Abdul Wahid Bangalzai is not the first time. It's again off the bowling of Khyber Bhatti that he's pulled off a blinder. He's taken a very, very good catch to dismiss Sahibzada Farhan. Did that earlier with Mohammad Haris and now with the other opener. Wasn't too short. He just sliced it, and look at Abdul Wahid Bangalzai. That ball was always going away from him, but he judged it to perfection. Second blinder of the day for the youngster. Sahibzada Farhan played quite nicely for his 48. KP. Been around for quite some time. 30 years of age, 1174 runs, average below 20, and the strike rate below 120. Two for Khyber Bhatti. Two good catches of his bowling, both by Abdul Wahid Bangalzai. Israrullah on strike. Excellent catch, excellent catch. Let's have a look at the wicket again. That slice was always taking the ball away from Bangalzai. He kept his eye on it. Good anticipation as well. You always anticipate these things. When you're standing backward point, you know the ball is going to curl away from you to your left. So you make those adjustments and understand, because the batsman is slicing the ball. You see on that occasion, Sahibzada Farhan opening the blade. The ball will curve and also spin away from that fielder at backward point. You just see him very much ready and attentive on that occasion, Bangalzai. 87 for 2.
Shaji, come on, Shaji, come on, Shaji. Yasir Shah has really galvanized this Balochistan side. Remember, these are the two teams who met in the final of the Pakistan Cup in May, towards the back end of the last season. That's a beautiful stroke. Footwork made it possible, and Kamran Ghulam, a very good player of spin. Absolutely no respect for the captain of the opposition and Yasir Shah. You back yourself up as a batter, down the wicket, cover the line of the ball and smash it straight. And it's also a safe zone, just over the bowler. Even if you don't make it all the way, it'll land safe. And again, this time over extra cover, this time opportunity. Oh, he's dropped it. It's a 4. Ahmad Butt has messed it up. He got to it, got the ball in his hand. On the second attempt, he couldn't keep it in his hands. One bounce, got to be a boundary, but we'll have a look at it. By modern day standards, it's a regulation these days. Is bounced inside, so that is a boundary 4. But Ahmad Butt will be disappointed with that. These catches are not unusual anymore, and fielders do practice a lot. As we see, umpire Zamir Haider giving the confirmation for the boundary. Come on, Shah, koi baat nahi, koi baat nahi. Twice he's come down the track. They've achieved their target of the over, maybe. That's the one. Little inside out. Looks like he misjudged it initially. He almost overrun it. That fielder was placed strategically quite wide. It was almost extra cover. And he had to run towards his right as opposed to his left, if you think an inside drive over extra cover. Such was the placement of the fielder. I think Ahmad Butt would have caught it on the second attempt, but the only thing is that he was worried about how far is the rope now. He was already right at the edge of the rope while trying to take that catch. So on that second attempt, his mind was also on his foot. Where am I standing? That was close, and now overthrows. No. Side against it. In the second attempt, you see, he's not even just trying to catch the ball, he's trying to keep it in play. Center. Shabash Shaji, Shabash Shaji. Expensive over, 12 off it. Single will bring up the 100 as well for KP in the 12th over. In fact, it is the end of the 12th over. Kamran Ghulam really playing nicely. 100 for 2 after 12. Some crowd is in here at the Pindi Cricket Stadium.
of the very famous venues of Pakistan cricket. The stadium was built in 1991. The first game was played here, and since then it's become a regular fixture in terms of Pakistan's cricket calendar, be it domestic or international. As Bangalze's first catch, airborne he was. The second one had to stretch. Remember, he's a right-handed batter, but he's a left-handed fielder. He's on fire, the youngster. It's good to see him and Hasibullah coming through the ranks and contributing. Center? Was you? It is center. Shao Bhatti. Talking about the Pindi Cricket Stadium, when it was built, it's been a regular feature. Hosted World Cup 1996, England, South Africa, and then South Africa, UAE. Initially, when it was built, this media center didn't look as you're seeing it now. It was rebuilt a few years ago. As this one's gone through the gap. Just gently guided away through the gap. Waited very nicely on it. First boundary for Israrullah. Look at that. He just played it late. Almost gone past him. Just use of the wrist and outfield is pretty quick. Any famous memories for you, Sikandar, from this iconic venue from Pakistan? Anything that stand out that you've covered or watched over the years? Some of them are there. A couple of PSL games long ago, and in recent times had a test matches with Australia. I was watching hoping that Sri Lanka would play. That's played in the air. One bounce. Yeah, I mean, my recent memory only takes me back to the national T20s or the PSLs or the past tours that took place. Pakistan, Sri Lanka, I think, was very much disturbed by the weather here. It was extremely cold. But a good series against Australia. They love their cricket over here. And we remember when the national T20 games were being played in day-night games, people came in big numbers. My memory doesn't help me because after the COVID, when everything was empty, it seems like, you know, all the memory before that has been wiped out. Talking about this Pindi Cricket Stadium, look at the number of games it's hosted. T20 games, 174. Just National Stadium Karachi, Dubai International Stadium and the Sher-e-Bangla Stadium in Dhaka has hosted more games. And right behind it is Wankhede in Mumbai and Gaddafi Stadium in Lahore. 3 venues in top 5, so no wonder Pakistan's doing well at T20s because we do play a lot of T20 cricket here in this country. First one was in 2012. First T20 that was played here. And when you talked about those championships earlier on, call is for 2. Just the one. In that tournament, 2012, cricket returned after some time to this venue as Kamran Ghulam celebrates his 50. Just 35 deliveries. He went about his business very, very methodically. He's a very, very efficient cricketer in all formats now. Well played, Kamran Ghulam.
आजा अरे शानी भाई शाबाश शाजी Talking about that tournament in 2012, it was the first ever T20 played here, the national championship, and we saw huge crowds here. That was won by Sialkot Stallions. The one in 2014, in February 2014, also attracted huge crowds. I remember the finals. The authorities had to turn the crowd away because it was filled before the game started. Lahore Lions took that one. Peshawar, Lahore Blues, Khyber Pakhtunkhwa, they've been the other winners in T20 championships here in Rawalpindi. Come on, Shah. I was talking to Kamran Ghulam yesterday and I asked him that you got 4 out of 4, maybe one more win, then are you going to test your bench? He's already given Israr the opportunity, the first outing for him, left Maz out. He's strengthening the batting just to see if they have their best 11 available at the end of the tournament. He hasn't got hold of it. He's down on one knee and could have been a problem. Just enough to go over the rope. It never looked like crossing the fence when he made contact. It looked like a top edge. These bats are so good these days. Look at that. Nowhere near of the middle of the bat. Fielder was interested all the way. It had just enough. Kamran Ghulam will take the boundary, even though it wasn't convincing. Yasir Shah finishes off his spell with none for 29, 117 for 2. Bowling change, left arm around. More left arm spins. Seems like spin is the way to go in the match today. Yasir Shah, Kashyap Bhatti, Haris. So now we're going to see that what plan is going on in Yasir Shah's mind. He knows that he's got them where he would like them to be at the end of 15, around 120 mark. Slightly short, and that's put away. There is no such thing as losers anymore. Every ball in the match counts. Long hop. Israrullah was looking to kickstart his innings, and this was an absolute gift from Haris Sohail. Israrullah has been around for quite a long time. He's just 30 years of age, and he happened to have opened the innings with Rafatullah Mohand, his assistant coach now for this KP team. That does show that he's been around for a while. Big shout, and the finger has gone up. Quicker delivery from Haris Sohail, and Kamran Ghulam was late on that, looking to hit it over mid-wicket. Slight deception in pace there took care of him. Oh, didn't look very pretty there. Kamran Ghulam, generally a very good player of spin.
clearly defeated by the pace and length of this delivery. Yep, you should have looked to have played straight. That's what he's telling himself. Good knock nonetheless. Gone for 57. KP 124 for 3. Adil Amin, the new man in good form in this tournament. 1,085 runs at an average of almost 27, a strike rate of 114. Just the 150. It's surprising to see that. Probably hit the biggest six of the tournament so far. You probably feel when Kamran Ghulam got out that wasn't necessary, but then I think Kamran was thinking he's got his 50. Now let's try and increase this run rate, get the scoreboard moving. But would you play a shot like that if you were 47? Why would you play it when you're 50? Mindset. Do you feel accomplished by scoring a 50 and thinking that you can take chances? This time it's brilliantly done. Excellent from Hussain Talat. He really balanced himself very nicely. Probably we'll have another look at that, but with the naked eye, it looked pretty safe and secure from Hussain Talat. For some reason, these catches have now become regulation. Nobody goes in like hugs or goes crazy. What a catch. This catch, whenever I see such catches, I say this is game awareness. Also, presence of mind. Where you are, when to catch the ball, when to toss it up, put your foot out, get your balance right. Top signal is out. Let's have a look at it again. Aris Sohail will get his first wicket in the game if this is given out. Second, sorry. He catches, we know that he's falling over. He just looks and he tosses it up, gets his balance right, comes back into field, and easy catch. Another angle. His right leg was still away from that skirting, and by the time the left leg came around, he'd thrown the ball up in the air. This is pretty conclusive up until that point. He's got to see if he completes the catch. When he does, like I said, with the naked eye, it looked like pretty good. Touching the skirting now, but he's nowhere near the ball just yet. That skip took him away from that, and easy as you like in the end. Brilliantly done, Hussain Talat. Like Sikandar said, this is called presence of mind and the athleticism as well. Umpire is taking his time. Like Sikandar said, these are not unusual anymore. Every T20 game, you see at least one, if not more, of such catches. Even more spectacular than that. This time no dive was required. Yeah, he's been given 125 for 4 with Israr walking back after scoring 15 of 15.
Amir Azmat is the new batter in. Couple of cheap wickets really for Haris Sohail. Come on, everybody. Shabba, shabba. Ball ala, ball ala. Ball is for 2. And they'll get there comfortably. Throw is to the non-striker end. Over number 15 done. KPK 127 for 4. Are they still off the field? Have a look what is happening with him. दो नए बैट्समैन यहाँ पिच पर हैं, आदिल अमीन और उनके हमरा आमिर हैं, और बॉलिंग करने के लिए जुनैद खान आ गए हैं। आज अपने पहले स्पेल में इन्होंने 2 ओवर्स में 15 रन दिए थे। कुछ ज़्यादा रवानी में लगे नहीं थे जुनैद खान, लेकिन इस वक्त गेंद काफी हद तक रफ हो चुकी है, और क्या ये रिवर्स स्विंग कर सकेंगे? इन लाइन ऑफ अटैक जो है विकेट टू विकेट रहेगा। बड़ी तेज दौड़ लगाई और आमिर ने दूसरा रन भी उन्होंने हासिल कर लिया बड़ी तेजी के साथ। जी ये अच्छा टाइम है। और इससे पहले कि हम आगे बात करें, विकेट देखते हैं आखिरी। सादरुल्लाह ज़्यादा फोर्स नहीं लगा सके, एलिवेशन नहीं ले सके, और उतना ही शानदार कैच हुसैन तलत की जानिब से। ये टूर्नामेंट याद रखा जाएगा तारिक भाई कैचेस की वजह से, कि इतने शानदार बेहतरीन कैचेस हमें इस टूर्नामेंट में देखने को मिले हैं। बेहतरीन फिटनेस लड़कों ने दिखाई है, और इस तरह के कैचेस जो हैं, ये जिस तरह की फिटनेस और ये जो हुनर दिखाया हुसैन तलत ने, ये पाकिस्तान क्रिकेट को ज़रूरत है। क्योंकि बाउंड्री पर ये अभी तक हमने हुनरवरी कम देखी है पाकिस्तान क्रिकेट में, जैसे हम दुनिया के दीगर ममालिक में और लीग्स में देखते हैं। क्रिकेटर्स गेम को रोकते हैं, पास ऑन कर देते हैं, कई बार छक्का बजाते हुए, और छक्के की बजाय विकेट गिर जाती है। इससे बहुत बड़ा फ़र्क आ जाता है, मैचेस का नक्शा तब्दील हो जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और इसका बहुत ज़्यादा दारोमदार फिटनेस पे है, क्योंकि इस बार हमने देख रहे हैं जो फिटनेस है लड़कों की बहुत बेहतरीन नज़र आई है। यंगस्टर्स ने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि हम ऐसे हैं कि जो बाउंड्री पे फील्ड करेंगे और अच्छी फील्डिंग करेंगे। ऑल्दो हमें कुछ वेटरन्स की जानिब से कैचेस ड्रॉप होते भी नजर आए हैं, लेकिन उनको कवर अप किया है यंगस्टर्स की एक्सीलेंट फील्डिंग ने। इससे कहते हैं जो फिट है वही हिट है। बिल्कुल, बेशक, खुद अली यूनुस की तरफ। अच्छा बाउंसर अटेम्प्ट किया, अंपायर ने फौरन मुत्तला किया कि इसके बाद अगर आप दोबारा बाउंसर करने के लिए जाएंगे और गेंद जो है कंधे के ऊपर जाएगी तो फिर नो बॉल करार दी जाएगी। 1 ओवर में एक ही बार बाउंसर किया जा सकता है। इसलिए कहा जाता है कि ये बल्लेबाजों का खेल है। ये ख़ास तौर पर जो वाइट बॉल क्रिकेट है, इसमें बॉलर्स पर बहुत ज़्यादा पाबंदियां हैं, फील्ड की पाबंदियां हैं, बाउंसर्स करने की पाबंदियां हैं, वाइड की पाबंदी है। शानदार बॉलिंग जुनैद खान की जानिब से। हमेशा देखा गया है कि ये हालिया बरसों में ये ज़्यादा कंफर्टेबल रहे हैं पुरानी गेंद पर। जी हाँ, काफ़ी अच्छे एक्सपोनेंट रहे हैं रिवर्स स्विंग के। काफ़ी अरसे से पाकिस्तान के डोमेस्टिक, पाकिस्तान इंटरनेशनल के सर्किट में रहे हैं जुनैद खान। अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं, लेकिन रास्ता अपना भटक से गए। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी की विनर टीम का हिस्सा थे, उसके बाद से ऐसा लगा जैसे अपना रास्ता भूल गए, टीम से बाहर हो गए। अब नए लड़के आ गए और अब कोशिश ये कर रहे हैं कि वापस कम बैक करें, लेकिन इससे बेहतर परफॉर्मेंस दिखानी होगी। उधर रन्स नहीं दिए, लेकिन विकेट्स हासिल करनी होगी, क्योंकि इम्पैक्ट बॉलर आप तभी बनते हैं जब आप विकेट्स हासिल करते हैं टीम के लिए।
एक और नो बॉल और रन आउट होने का खतरा। मंगल सही आज के दिन के फील्डिंग हीरो हैं, इस बार उनका निशाना लगा नहीं, वरना ये नो बॉल पर भी विकेट मिल जाती क्योंकि रन आउट शुमार किया जाता है। जुनैद खान की दूसरी नो बॉल है। ये मसला रहा है जुनैद खान के लिए, पहुंच जाते लेकिन जल्दी जरूर करनी पड़ी थी। और जब आप एस फास्ट बॉलर हो और आप इतने नो बॉल करें, इस टूर्नामेंट में 5 नो बॉल्स कर चुके हैं, और ना सिर्फ नो बॉल्स होते हैं, 5 नो बॉल्स का मतलब है 5 फ्री हिट्स। तो अगर टीम का मैच फंसा हो और आप इस तरह का इररिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाएं और नो बॉल्स कर दें, तो किसी भी कप्तान को ऐसा बॉलर नहीं भाता है। आकिफ जावेद इनसे पहले खेल रहे थे, क्योंकि डेथ ओवर्स में उनसे ज्यादा अच्छी बॉलिंग नहीं हो रही थी, इसलिए इनको टीम में शामिल किया गया। ये अच्छा शॉट, 4 रन्स। ये एक मोतबर बैट्समैन का पुल शॉट था और आमिर जो हैं दिन ब दिन खुद को मोतबर बैट्समैन साबित कर रहे हैं। आमिर अजमत मिडिल ऑर्डर में भी खुद को मनवाना चाह रहे हैं। ये बहुत इंप्रेसिव यंगस्टर सामने आए हैं आमिर अजमत। वैसे तो पिछले कुछ सीजन से खेल रहे हैं, लेकिन इस बार उनका सही निखार हम देखने को मिल रहा है हमें, और ये अच्छा कंपटीशन हमें नजर आ रहा है। यंग जो फिनिशर्स हैं, जिसमें इरफानुल्लाह न्याजी की बात करें, आमिर ने कल बहुत कमाल की बैटिंग की, और अब हमें ये भी नजर आ रहे हैं, तो ये अच्छा कॉम्बिनेशन है। उसे उठा दिया इस बार, यूं ही देखा कि लेंथ मुख्तलिफ है, अपने शॉट में रद्दोबदल किया, लेकिन नतीजे में बिल्कुल नहीं। लाजवाब बैटिंग आमिर की जानिब से, अपने कद का फायदा उठाया, अपनी हिटिंग की सलाहियतों का। जुनैद खान को स्पिनर की तरह उन्होंने ट्रीट किया। ये दलेर क्रिकेट है और टेक्निकली करेक्ट भी है, दोनों एलिमेंट शामिल है इसके अंदर। कदमों का इस्तेमाल किया और सीधा मारा, इसीलिए मैं इनको बहुत हाई रेट करूंगा आमिर अजमत को। 16 ओवर्स के इख्तिताम पे 140 पे 4। यार जुनैद भाई चले जाओ आगे, काशिफ जुनैद भाई चले जाओ आगे, काशिफ पट्टी बैक पट्टी आ गया, पट्टी उधर चला गया, जाओ तो कौन जाएगा, जल्दी चले जाओ, एक बंदा जाएगा ना उधर, चलो वो चला गया, सही है। आदिल बॉलिंग चेंज है। इस टूर्नामेंट की खुशाइन बात रही है कि हमें 2 डिफरेंट नंबर्स पे काफ़ी यंगस्टर्स नज़र आए उभरते हुए। अगर ओपनिंग स्लॉट की हम बात करें, साइम अयूब बहुत इंप्रेसिव रहे हैं, हसीबुल्लाह खान बहुत इंप्रेसिव रहे हैं। अगर आप फिनिशर्स की बात करते हैं तो इरफानुल्लाह न्याजी, आमिर जमाल, आमिर अजमत, तो ये बहुत अच्छे साइन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। काश हम एक क्वालिटी स्पिनर, एक डिफरेंट क्वालिटी स्पिनर, एक एक्स फैक्टर देख सकते, जैसे अली माजिद शाह नज़र आए हैं ज़रूर, मेहरान मुमताज़। तो ये अच्छे साइन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि नए यंगस्टर्स अब सामने आ रहे हैं। यहाँ पर दोनों एंड से फास्ट बॉलर सामने आ रहे हैं। खुर्रम शहजाद और लाजवाब शॉट खेलने के लिए गए और नतीजा मिल गया। 80 कुव्वत सर्व की थी आदिल अमीन ने, जो बहुत जोर से शॉट खेलते हैं। इससे गेंद पर आखिर तक इख्तियार रहा नहीं हुसैन तलत, जिन्होंने कुछ देर पहले कमाल कैच पकड़ा था। इस बार उनके जंप की टाइमिंग इतनी अच्छी नहीं रही। जी लेंथ बॉलिंग की थी और काफ़ी तेज़ बॉल गया उनकी तरफ, क्योंकि आदिल अमीन जब हिट मारते हैं तो वो बहुत पावरफुल शॉट होता है। और हमने देखा इससे पिछले मैच में भी जिस तरीके से उन्होंने छक्के हासिल किए थे, ज़ोरदार और बड़ी हिट मारते हैं। डिसअपॉइंटेड ज़रूर होंगे हुसैन जब ये शॉट खेलते हैं लेग साइड में। आदिल अमीन, मुझे मंजूर इलाही की याद आ जाती है 80 की दहाई में जिस तरह बैटिंग वो किया करते थे। और 4 रन और मिल जाएंगे। यॉक करने की कोशिश की और अच्छा टिकल करने में कामयाब हो गए। बहुत फाइन चली गई गेंद, फाइन लेग से भी 150 रन खैबर पख्तूनख्वा ने हासिल कर लिए। यहाँ पे खेलते हुए बॉलर से पिछला लेंथ बॉल था और प्रिडिक्ट कर लिया था कि अगला बॉल ये आगे ही करेंगे। और ऑल्दो रिस्की शॉट था क्योंकि दोनों टांगे अपनी जोड़ के विकेट के सामने खेल रहे थे, लेकिन सिर्फ बल्ला ही लगाया और 4 रन हासिल किए। यहाँ बहुत ज्यादा खतरा मोल लिया था, अपनी स्टंप्स को तकरीबन पीछे से एक्सपोज किया हुआ था, लेग स्टंप साफ नजर आ रही थी। लेकिन कहते हैं कि जो सिला है वो भी खतरे से ही मंसूब होता है, खतरे में ही आपको सिला भी मिलता है। और 4 रन आदिल अमीन ने हासिल किए।
151 4 विकेटों के नुकसान पर 17वां ओवर जारी है और ये 200 रन तक पहुंचने की अहलियत रखते हैं, क्योंकि आदिल अमीन और आमिर हयात ये दोनों में बराबर अहलियत है कि ये एक ओवर में ये बना सकते हैं 20 रन और एक में 15। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, इसमें कोई शक नहीं है। दोनों पावर हिटर्स हैं और हमने देखा है इस टूर्नामेंट में बहुत लंबे छक्के हमें नजर आए हैं इन केपी के बैटर्स की जानिब से। फील्ड में चेंज होते हुए आप देख रहे हैं, फील्डर जो थर्ड का फील्डर है वो सर्कल के अंदर आ गया और लॉन्ग ऑफ पे यासिर शाह खुद जा रहे हैं। एक मिड विकेट कॉर्नर पे फील्डर मौजूद हैं और स्क्वायर लेग पे भी डीप फील्डर मौजूद हैं। भाई महंगे साबित हुए हैं। खुर्रम शहजाद इनसे पहला ओवर भी नहीं कराया गया, क्योंकि शुरू में ये गेंद को मूव कराने की अहलियत रखते हैं और ये जो कुकाबरा की गेंद है, ये जो वाइट बॉल है, ये ज़्यादा देर तक मूव होती नहीं है। हालांकि इतना भी कोई स्विंग बॉलर बॉलिंग कर रहा हो, जिस तरह हमने रात देखा था जो श्रीलंका और भारत का मुकाबला था, उसमें भारत के स्विंग बॉलर से वो भी एक ओवर ही स्विंग कर सके थे बमुश्किल। और लाजवाब कैच, शानदार, नाकाबिले यकीन। खुर्रम शहजाद ने इसे एक हाथ से ही इस बार उचक लिया। आदिल अमीन जो बड़े जारहाना मूड में थे, वो अपनी विकेट से हाथ धो बैठे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विकेट हासिल किए है और एक मिक्स सा दिन रहा है बलूचिस्तान के लिए फील्डिंग में, जहां हमें कैचेस ड्रॉप होते हुए नजर आए हैं तो हमें ब्रिलियंट कैचेस पकड़ते हुए फील्डर नजर आए हैं। इस बार खुर्रम शहजाद ने एक हाथ से, और रिएक्शन बहुत तेज था, क्योंकि जब आप फॉलो थ्रू में होते हैं तो आसान नहीं होता है आपको बॉलर्स बैक ड्राइव को इस तरीके से कैच करना, लेकिन आजकल के मॉडर्न डे क्रिकेटर्स ये फिट क्रिकेटर्स हैं, इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप 15 रन बना सके 152 पर 5 केपी। Slightly covering. सर्वर एक बार आता है राइट आर्म ओवर। ऐसे ओवर खत्म। देख लो जी। सरवर अफरीदी एक और ऐसे बैट्समैन जिनकी छक्के लगाने की शोहरत है, इनकी बैटिंग खत्म नहीं होती है। लंबी बैटिंग लाइनअप है, बेपनाह इसमें गहराई है, उसी वजह से इस ओवर में भी 13 रन हासिल किए केपी ने। स्कोर है उनका 153 पे 5। देखिए गेंद बल्ले पे खासी नीचे लगी थी, यॉर्कर करने के लिए गए थे, लो फुल टॉस हुई, लेकिन इस कैच का कोई जवाब नहीं, क्योंकि ये अपनी मदद आपके तहत इससे अच्छा कैच हो नहीं सकता था। और सरप्राइज हो गए थे, वो शायद सोच रहे थे कि हम आसाम से मिड ऑफ की जानिब के लिए सिंगल हासिल करूंगा, और शॉक हो गए कि एकदम कैच पकड़ लिया। बहुत ही शानदार कैच, बहुत ही बेहतरीन, मतलब सबसे इम्प्रेसिव बात इस टूर्नामेंट की रही है वो कैचेस ही रहे हैं। फिटनेस बहुत शानदार रही है लड़कों की, ऐसा लगा है कि जैसे ऑफ द सीजन बहुत काम किया गया है उनकी फिटनेस के ऊपर। तो दाद देनी होगी यहाँ पे जो कोचेज इन्वॉल्व हैं सारे इस नेशनल T20 में, क्योंकि उसके रिजल्ट्स अब हमें नजर आ रहे हैं सामने। और ख़ास तौर पर जो फिटनेस ट्रेनर्स हैं इन टीमों के साथ, उनको भी शाबाश मिलनी चाहिए। खुद जो खिलाड़ी हैं वो भी अब पेशेवर अपने आप को हम कह सकते हैं कि इनको खुद भी एहसास हो चला है कि अगर उन्हें खेल में रहना है, अब अगर अपने करियर को तूल देना है, क्योंकि डे इन डे आउट क्रिकेट हो रही है, बहुत ज़्यादा मुसाबकत का दौर है ये क्रिकेट के खेल में, और इसमें फिटनेस के बगैर आप नहीं रह सकते ज़्यादा देर जिंदा। आहिस्ता गेंद थी, इसलिए बाउंड्री तक भी नहीं पहुंचेगी, दूसरा रन हासिल कर लेंगे। सर्वर खासी गैर रिवायती जगहों पर मैदान में शॉट्स खेलते हैं।
अच्छे फिट क्रिकेटर हैं और आप फिटनेस की बात कर रहे थे, तो अब मॉडर्न डे क्रिकेट की रिक्वायरमेंट हो गई है। अगर आप फिट नहीं हैं, अगर आप एथलेटिक नहीं है, अगर एक्रोबैटिक नहीं है, आप कुछ डिफरेंट करता हुआ नज़र नहीं आते हैं ग्राउंड में, तो आप पीछे रह जाते हैं। और यहाँ पे मैं दाद देनी होगी यहाँ पे पीसीबी पूरे कोचेस के पैनल को, ट्रेनर्स को। बहुत काम किया गया है यहाँ पे यंग लड़कों पे, और यंग से मुराद उमर अमीन भी हैं। बहुत शानदार कैच उन्होंने पकड़ा, कैच ऑफ द टूर्नामेंट। यहाँ क्योंकि पिछले 2 बरस कैचिंग का म्यार बहुत ज़्यादा ख़राब था। मिस कई मैचेस रात को भी हो रहे थे, लेकिन जाहिर है कि ये कोई बहाना नहीं था। दिन को भी कैचेस गिर रहे थे और कोचेस जो हैं या फिर जितने भी जो फील्डिंग कोचेस थे वो भी दबाव में थे। लेकिन इस साल वाज़े तौर पर इस ज़िम्न में ये बेहतरी नज़र आ रही है। उमर अमीन ने जो कैच पकड़ा, उनने मैच ही पकड़ लिया दरअसल उस मुकाबले पे। आज अच्छा कैच हुसैन तलत ने लिया, बाउंड्री लाइन पर जंप लगाकर छक्का बचाया और फिर कैच जा लिया। जहाँ उमर अमीन का आपने जिक्र किया, तो बहुत ही शानदार कैच रहा मेरे नज़दीक तो इस टूर्नामेंट का सबसे बेहतरीन कैच। क्योंकि जब आप पीछे को भाग रहे होते हैं, बॉल आपके ऊपर होता है, तो उसे जज करना और अपनी डाइव को प्रॉपर तरीके से करना ये बहुत मुश्किल होता है। तो दाद देनी होगी, उमर अमीन ने बहुत शानदार फिटनेस दिखाई है और कमाल का कैच पकड़ा। उमर अमीन ने शायद अफरीदी के उस 2009 के वर्ल्ड कप की कैच की याद दिलाई जो उन्होंने स्कॉट स्टायरिस का पकड़ा था। लेकिन मुझे लगता है ये कैच ज्यादा मुश्किल था क्योंकि इसमें इनको डाइव करनी पड़ी पीछे की तरफ। तो शाबाश देनी होगी उमर अमीन को। लेकिन इस गेम को कोई नहीं कैच कर सकता। ये मैदान से बाहर चलिए। सर्वर ये भी अब हवाई सफर पर निकलने लगे हैं। 163 पर 5 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं और आज बड़ा मौका है खैबर पख्तूनख्वा के पास कि वो इस टूर्नामेंट में सबसे बड़े स्कोर का रिकॉर्ड बना दें। जहां प्लेटफॉर्म तो सेट है, इसके बाद 2 ओवर्स मजीद पेस करने हैं केपी के बैटर्स को। और ये पार्टनरशिप अच्छी, 11 रन पे सिर्फ 5 बॉलों पे। तो आप समझ सकते हैं कि दोनों बैटर्स जो हैं ये डैशर हैं, ये आप बड़ी हिट के लिए ही जाएंगे। हुसैन तलत से इस मौके पर 18वां ओवर कराना ये जाहिर करता है यासिर शाह का इतना एतमाद नहीं है अपने जो दूसरे 3 पेसर्स हैं। एक और उठता हुआ शॉट, एक और छक्का, इस बार एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से। सर्वर आहनी हाथ दिखाने के लिए जाने जाते हैं और आज वो बेअब कर दिखा भी रहे हैं पिंडी में। ज्यादा पेस नहीं है हुसैन तलत की और हैरानगी जरूर है कि आखिरी डेथ ओवर्स में बॉलिंग कर रहे हैं और अगेंस्ट पावर हिटर्स आप जेंटल आउटसाइड दी ऑफ स्टंप मुंह में गिरा हुआ बॉल करेंगे तो उसको ऐसा ही ट्रीटमेंट मिलेगा। और जिस तरीके के पावर हिटर्स ये दोनों हैं, आमिर और सर्वर, इस तरह की लेंथ डिलीवरीज को ये नहीं छोड़ने वाले हैं। सोलह रन्स पहले ही बन चुके हैं इस ओवर में और सर्वर जो है अभी आखिरी गेंद को भी बिल्कुल छोड़ने के मूड में नजर नहीं आते। आज इस पिच पर जो बैटिंग करने के लिए बड़ी साजगार थी। ये देखिए ये लाजवाब कैचेस, ये तो कैच गिरा दिया था काशिफ भट्टी ने और ये बहुत ही आला कैच पकड़ा बंगल जई ने और उसके बाद हुसैन तलत ने। सुपर फील्डिंग, इसमें कोई शक नहीं है। इसे हवा में खेलें, फील्डर मौजूद है लेकिन देखते ही रह जाएंगे। ये बॉल चला जाएगा मिड विकेट बाउंड्री के पार 6 रन के लिए। तो एक बहुत ही महंगा ओवर, ये हैट्रिक हो गई है छक्कों की हुसैन तलत की जानिब से। हैरानगी डेफिनेटली कि इस टाइम पे मुश्किल हालात में हुसैन तलत को बॉलिंग देना, क्या ये सही डिसीजन है? क्या ये ओवर मैच चेंजिंग साबित होगा और केपी के हक में इस मैच को ले जाएगा? क्योंकि बड़ा ओवर हो गया ये।
3 छक्के 3 बॉलों पे, और यही हम एसोसिएट करते हैं केपी के पावर हिटर्स से कि बड़े हिट मारते हैं। 6 बॉलों पे 22 रन आए आखिरी ओवर में हुसैन तलत के। नॉट श्योर कि ये एक अच्छा डिसीजन था हुसैन तलत को आखिर में बॉलिंग करवाना, क्योंकि अब स्कोर पहुंच गया 175 रन 18 ओवर से इख्तिताम पे। काफ़ी देर के बाद आमिर अजमत जो हैं बॉलर के रूबरू हैं, और ये अच्छा शॉट खेला स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, फील्डर ने डाइव की और फिट शान मसूद ने इसे रोक दिखाया। भी उम्दा रनिंग और पेशकदमी की शान मसूद ने गेंद पर नजर रखी और बर वक्त उन्होंने डाइव करके जान पे खेलकर ये बाउंड्री बचाई। यहाँ पाकिस्तान के फिटनेस के कल्चर में जो चेंज आई है उसमें बहुत अहम रोल शान मसूद का है, और यहाँ पे वो प्रूव करते हुए कि फिटनेस कितनी इंपॉर्टेंट है, एक एक रन रोकना कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक ट्रू प्रोफेशनल हैं। और यहाँ पे रिजल्ट्स उनके सामने आते हुए, क्योंकि ऑफ द सीजन जब आप मेहनत करते हैं तो रिजल्ट सीजन में आपको मिलते हैं। अच्छी फील्डिंग खुर्रम शहजाद, यानी उससे जितने भी जब भी फील्डिंग की आजमाइश होती थी पाकिस्तानी नेशनल क्रिकेटर्स की, तो पिछले कई बरस से हम देख रहे हैं शान मसूद और मोहम्मद रिजवान, ये इनको सबसे ज़्यादा पॉइंट्स मिलते थे और वो नज़र भी आ रहा है। हालांकि पूरी तरह फिट नहीं थे पिछले मैच में मोहम्मद रिजवान भारत के खिलाफ, इसके बावजूद मैच विनिंग इनिंग खेल गया तकरीबन एक टांग पे ही, एक घुटने पे। और खेलने में कामयाब हुए, ये लाजवाब लेफ्ट शॉट फाइन लेग के ऊपर से आमिर जमाल जो पिछले ओवर में सामने चौके छक्के लगा रहे थे, उन्होंने विकेटों के अकब में भी अपनी अहलियत साबित कर दी। या बहुत ही स्मार्ट बैटिंग बॉलर के साथ खेलते हुए बहुत प्रेडिक्टेबल हो गए थे कामरान गुलाम। लो फुल टॉस की ऑप्शन चूज की उन्होंने, और आमिर अजमत जितने फिट हैं बहुत जल्दी बॉल पे आए, क्योंकि पेस अच्छी है खुर्रम की, तो आपको नीचे आने के लिए बहुत जल्दी आना पड़ता है, और यही आमिर अजमत ने किया, क्योंकि यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, पावरफुल हैं, सिर्फ बल्ला ही लगाया और 4 रन हासिल किए। परेशानियां डेफिनेटली शाजी के लिए हैं। मुल्तान सुल्तान के जो हामी हैं वो बहुत खुश होंगे आमिर अजमत की इस पार्टनरशिप में बैटिंग देखकर। इस बार खुद को शौक करा लिया, गेंद बिल्कुल बॉक्स में जाकर गिरी। इस ओवर में 2 बार वापसी की है खुर्रम शहजाद ने। 190 वो बेहतरीन स्कोर है सिंध ने इस सीजन में बनाया था। मद्दे मुकाबिल टीम थी नॉर्दर्न की यहीं पर, अब उससे आगे इनको निकलना चाहिए, क्योंकि अभी भी 8 गेंदें बाकी हैं। आमिर अजमत गैर मामूली शॉट्स खेलते जा रहे हैं। ये मॉडर्न डे क्रिकेट की रिक्वायरमेंट होगी ये शॉट, क्योंकि बॉलर्स जो हैं वो इतने स्मार्ट हैं कि वो जब यॉर्कर लेंथ करते हैं तो आपको उनको काउंटर अटैक करना है, और उसके लिए ये बेहतरीन शॉट है। लो फुल टॉसेस, यॉर्कर लेंथ, अगर आपको ये शॉट आता है तो आप T20 क्रिकेट में सक्सेसफुल हैं। यार T20 क्रिकेट में वो यॉर्कर जो है अब वो महफूज गेंद भी नहीं रही बॉलर के लिए। एक और अच्छा शॉट विप किया इसे ऑफ साइड में 2 रन के लिए। ये सबसे पहले जहां तक मुझे याद पड़ता है जावेद मियांदाद ने ये शॉट खेलना शुरू किया था वेस्ट इंडीज के बॉलर्स के खिलाफ। मेलकम मार्शल और जो दीगर बॉलर्स होते थे उस जमाने में, टोनी ग्रे, उनके खिलाफ मियांदाद शॉट खेला करते थे और बहुत रन उन्होंने बनाए भी जावेद मियांदाद ने। लेकिन मॉडर्न डे क्रिकेट में फिर जॉर्ज बटलर या AB डिविलियर खास तौर पर उन्होंने इसको बामे उरूज पर पहुंचाया, इस तर्ज के क्रिकेट और बैटिंग को। से ऑन साइड में खेले, एक और रन के लिए आमिर जमाल का स्ट्राइक रेट 175 का, 366 स्ट्राइक रेट है सर्वर का। आमिर अजमत कर रहा था 184 पे 5। अजमत हो जमाल हो दोनों ही कमाल के क्रिकेटर हैं। जिस तरीके से इनिंग आखिरी 2 मैचेस में आमिर जमाल ने खेली है, बहुत ही हार्टनिंग साइन है, बहुत खुशाइन क्रिकेट पाकिस्तान क्रिकेट के लिए साइन है। अच्छी बॉलिंग भी करते हैं,
रन सेविंग बॉलिंग करते हैं। यहाँ पे परेशानियां हैं बलूचिस्तान के लिए, क्योंकि अब केपी ज़्यादा दूर नहीं है इस टूर्नामेंट का हाईएस्ट रन बनाने के लिए। ये जो हाईएस्ट रन अभी तक बनाए हैं वो 190 हैं, जो सिंध ने बनाए नॉर्दर्न के खिलाफ। 188 रन सेंट्रल पंजाब ने बनाए सिंध के खिलाफ। 187 कल बनाए हमें नॉर्दर्न ने साउथ पंजाब के खिलाफ। और अब यहाँ पे केपी 184 बलूचिस्तान के खिलाफ, और अभी 6 बॉलें बाकी हैं। 200 रन पर इस वक्त नजरें होंगी इन दोनों खिलाड़ियों की और इनके ड्रेसिंग रूम की भी। इस तरह की गेंदों पर अक्सर पल्ले टूट जाते हैं। इसके बाद आ सकते हैं कप्तान खालिद उस्मान खुद भी बेलॉस हैं। हालांकि चाहते तो इससे पहले भी बैटिंग करने के लिए आ सकते थे, लेकिन ये इस तरह कप्तान हैं जो हमेशा टीम बिल्ड करने में, नौजवानों को ज़्यादा मौके देने में यकीन रखते हैं। ये पूरी केपी की साइड को आप ऐसे कह सकते हैं कि एक दूसरे के लिए खेलते हैं। ज़्यादा सेल्फिश क्रिकेट हमें कभी देखने को मिली नहीं है, और यही इनकी शायद जो कामयाबी का राज है वो यही है। मुसलसल बैक टू बैक यॉर्कर, और वहां खराब फील्डिंग कर गए अब्दुल वाहिद बंगल सही, जिन्होंने आज दिल जीते थे अच्छे कैचेस देकर और बाउंड्रीज बचाकर। इस बार देखिए आसान सी गेंद उन्होंने छोड़ दी। जी हाँ, ये कंसंट्रेशन का फुकदान नजर आता है। ज़्यादा सही तरीके से झुक नहीं पाए, और जैसे हम आगे बात कर रहे थे, ये बहुत ही मिक्स सा दिन रहा है बलूचिस्तान के लिए। जहां हमें कमाल कैचेस देखने को मिले, वहां पे हमें बहुत आसानी से ये बाउंड्रीज भी देखने को मिली जो फील्डर्स ने करवाई हैं। तो क्या कहेंगे इस बारे में आप? क्या आप अच्छे को कहेंगे या बुरे को डिस्कस करेंगे जब कैंप होगा, जब बाहर जाएंगी टीम? चार रन थिक आउटसाइड आई लगा सर्वर के बल्ले से। फिर से यॉर्कर अटेम्प्ट की जुनैद खान ने। 200 रन के हर गेंद के साथ ये टीम करीब आती जा रही है। किस्मत भी साथ नहीं दे रही है जुनैद खान का, क्योंकि अगर वो सिंगल हुआ होता तो शायद दूसरे बैटर आते, लेकिन अगर दूसरे बैटर आ भी जाते तभी कुछ ऐसा ही होना था, क्योंकि दोनों की जो इंटेंशंस हैं वो बड़े हिट मारने की है। और ये आप देख सकते हैं, ये जो स्कोर लाइन है 193 की, उसके नीचे लिखा हुआ है घर वाली बात है। ये इनके जो बैट्समैन हैं उनके लिए भी एक घर वाली बात है यहाँ बैटिंग करना केपी के लिए इस पिंडी की पिच पर। फिर से फाइनल की जानिब बड़ा अच्छा रब देखने में आया। सर्वर ने एक और आला शॉट खेला। वो जान गए थे कि जुनैद यॉर्कर किए बगैर नहीं रहेंगे, इसलिए जल्दी आगे चले गए, अपनी स्टंप्स को बॉलर को दिखाया और उसके बाद गेंद को अपना बल्ला। जी हाई रिस्क शॉट जरूर था ये, लेकिन हाई रिवॉर्डिंग भी शॉट हो गया ये। और यहाँ पे करते हुए सबसे हाईएस्ट टोटल इस टूर्नामेंट का केपी हासिल करते हुए 197 रन अब उनके हो गए हैं, और अभी भी 2 बॉलें बाकी हैं। यहाँ पे जुनैद खान को शायद समझ नहीं आ रही है, क्योंकि लेंथ बॉलिंग करते हैं तो मिड विकेट लग जाती है, यॉर्कर लेंथ करते हैं तो पैडल स्वीप लग जाता है, आउटसाइड दी ऑफ स्टंप करते हैं तो एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से हिट लग रहा है। परेशानियां तो बहुत हैं। क्यों ना एक तेज बाउंसर किया जाए। अच्छा बाउंसर था। समझते हैं आप जुनैद खान को अच्छे तरीके से, अच्छा समझते हैं, क्योंकि प्रिडिक्टेबल हो गए थे कि अब करना ही बाउंसर है। यहाँ पे दाद देनी होगी तारिक सईद साहब को, बहुत पहले कह दिया था कि बाउंसर होने लगा है। यहाँ फास्ट बॉलर की ये नफ्सियात होती है कि अगर सामने हिटिंग हो रही है तो फिर ये जो रद्द अमल है ये अजल से ही रहा है। फास्ट बॉलर का ये सबसे बड़ा हथियार समझा जाता है। जुनैद खान को कि पहले जैसे तेज बॉलर नहीं रहे, लेकिन बॉलिंग के सारे गुण तो जानते हैं। और 4 रन मिल गए। विकेट के पीछे रन्स की झड़ी लगी रही इस ओवर में। सर्वर 38 तक जा पहुंचे और खैबर पख्तूनख्वा ने ये 200 रन का मार्का भी मार लिया। 5 विकेट के नुकसान पर उनने रिकॉर्ड बना लिया है इस
नेशनल T20 कप में सबसे बड़े स्कोर का, इसलिए ये ड्रेसिंग रूम बेहद खुश। पहली विकेट हारिस जल्दी आउट हो गए और अब सारा दबाव जो है ईशान मसूद और उनके साथियों पर होगा। विकेट बैटिंग करने के लिए अच्छी है, क्रीज का भी इस्तेमाल करने के लिए गए, लेंथ डिलीवरी थी, इस मौके पर आप लेंथ दे नहीं सकते बैटिंग टीम को। जी हम क्योंकि बाउंड्री तो हासिल करने जाना ही है, बैट तो उन्होंने मारना ही था और लकी रहे कि टॉप एज हुआ, क्योंकि इतनी जोर से बल्ला घुमाते हैं कि इवन जो एज है वो भी कैरी कर जाता है बाउंड्री की तरफ। यहाँ पे बहुत ही शानदार फिनिश करते हुए केपी की साइड, जैसे आपने कहा कि एक टाइम पे जब इनिंग का आगाज हुआ था जल्दी हारिस की विकेट हासिल कर ली थी बलूचिस्तान ने, लेकिन अच्छा संभाला कामरान गुलाम ने, साहिबजादा फरहान ने। बैटिंग कार्ड आप देख सकते हैं, जल्दी विकेट गिर गई थी हारिस की, कामरान गुलाम और साहिबजादा फरहान की बहुत शानदार पार्टनरशिप रही। बीच में थोड़ी स्ट्रगल जरूर रही जब असरार और आदिल अमीन जल्दी आउट हो गए, लेकिन फिर कमाल का फिनिश किया आमिर अजमत और मोहम्मद सरवर ने। 22 रन बनाए आमिर ने और मोहम्मद सरवर की शानदार इनिंग, 38 रन सिर्फ 11 बॉलों पे, कमाल का फिनिश करते हुए और अपनी टीम को 200 रन तक पहुंचा दिया। यहाँ जो अगली नस्ल के पावर हिटर हैं, आज उनका खेल हमने देखा, सरवर और आमिर का, और इसलिए खासा दर्द सहना पड़ा बलूचिस्तान के इस बॉलिंग अटैक को। आशिफ भट्टी ने गो की बेहतर बॉलिंग की, 4 ओवर 25 रन 2 विकेट। खुरम शहजाद ने एक खिलाड़ी को 43 रन के एवज आउट किया। जुनैद खान खाली हाथ वापस लौटे, उन्होंने 44 रन दिए। 2 खिलाड़ियों को हारिस सुहेल ने आउट किया, लेकिन 1 ओवर के बाद उनको बॉलिंग नहीं मिली। यहाँ तो सरवर आफरीदी इस वक्त हमारे साथ हैं, जिन्होंने आज 11 गेंदों में 38 रन बनाए, धुआंधार 38 रन। सरवर क्या कहिएगा अपनी इनिंग्स के मुतालिक खुद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँगा कि इतनी अच्छी इनिंग्स रही, तकरीबन 13-14 बॉलों पे 38 रन हो गए। तो मैं ये कहूँगा कि विकेट आज अच्छी थी। जब मैं चला गया पहले बॉल मार के, तो मैंने अपने पार्टनर से कह दिया कि यार आज विकेट अच्छी है और मेरे शॉट्स लगेंगे, क्योंकि मेरे शॉट्स जो है ना सारे सामने होते, इसलिए तो मेरे शॉट्स लग गए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो सरवर ये बताइएगा, आप आज 7वें नंबर पर खेलने के लिए आए, 6 और 7 पे ही आप ज़्यादा खेलते हैं, तो T20s में ज़्यादा ओवर्स होते नहीं, तो इंतज़ार करना बेंच पे कितना मुश्किल होता है बैटिंग का? देखिए एज अ प्रोफेशनल हमें हर नंबर पे जो है ना वो रेडी रहना चाहिए, चाहे वो लास्ट नंबर हो या 1 डाउन हो 2 डाउन हो, तो हमें वो रेडी रहना चाहिए। तो ये कोई इशू नहीं है कि मैं 7 नंबर पे आता हूँ या 8 नंबर पे आता हूँ, जब भी मुझे कोच कहेगा तो मैं रेडी हूँ, एज अ फौजी मैं रेडी रहूँगा। सरवर एक टाइम पे 2 सीनियर आपके बैटर्स आउट हो गए थे, इसरारुल्लाह और आदिल अमीन, और आप 2 यंग बैटर्स क्रीज पे थे, तो क्या बातचीत चल रही थी आपकी कि कहां तक टारगेट को लेके जाएंगे? देखिए जी, यही बात ही रिफत भाई कह रहे थे कि तकरीबन हम अगर 190 तक करेंगे तो इंशाल्लाह ये डिपेंडेबल स्कोर होगा, और अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें जी, आप मेरे ख्याल में 202 हो गए, तो ये तो माशाल्लाह हमारे बॉलिंग भी अच्छी है, अरशद इकबाल है, इमरान सीनियर है, तो इमरान जूनियर है, तो हमारे इंशाल्लाह हम डिपेंड करेंगे इस स्कोर को। और पिच कैसा खेल रहे हैं, आपको लगता है डिफेंड हो जाएगा आसानी से? देखिए जी, पिच इतना भी इजी नहीं है कि आप कहे कि यार हर बॉल जो है ना वो लगेगा, लेकिन जब आप अच्छी जगह पे बॉल करोगे तो मुश्किल है, मारना मुश्किल होगा जी। बहुत शुक्रिया सरवर आफरीदी, आप बहुत अच्छा खेल के गए। थैंक यू जी, थैंक यू। 201 रन खैबर पख्तूनख्वा ने आज स्कोर किए। साहिबजादा फरहान बैटिंग करने के लिए आए थे, मोहम्मद हारिस उनके साथ थे, उनका जल्दी कैच निकल गया, उसके बाद वो खुद निकल गए इस कैच के ज़रिए, और बाद में यहाँ पर रन्स की गंगा बहती रही और उसमें हाथ धोते रहे जो भी आया। साहिबजादा फरहान ने अच्छी बुनियाद फराहम की अपनी टीम को, और उसका किसी हद तक दोस्त जो है वो बॉलिंग अटैक को भी दिया सकता है। विकेट के दोनों जानिब बॉलिंग करते हुए फास्ट बॉलर नज़र आए, कदमों का भी इस्तेमाल किया साहिबजादा फरहान ने और उनके बैटिंग पार्टनर ने। तो ये बड़ी ख़तरनाक पार्टनरशिप थी। 84 रन दूसरी विकेट के लिए इसमें बने, और यही वजह थी कि आने वाले बैट्समैनों का काम खासा आसान हो गया। कामरान गुलाम आज भी बड़ी उम्दा बैटिंग करते रहे, और स्पिनर्स की भी उन्होंने खासी पिटाई की। इस शॉट से पहले तक ये काशिफ भट्टी ने कैच गिरा दिया था, और उसके बाद बंगल जई ने कोई गलती नहीं की, उन्होंने पॉइंट पर डाइव लगाकर कैच लिया, लेकिन रन्स रुके नहीं। यासिर शाह
जो हैं वो आए, उनको विकेट यहाँ मिल सकती थी, लेकिन किस्मत ने यावरी नहीं की। बाएं हाथ के इसरारुल्लाह को भेजा गया था ताकि लेग स्पिनर और बाएं हाथ के स्पिनर से वो निमट सकें। एक छक्का भी लगाया इसरारुल्लाह ने। फिर LBW आउट हुए कामरान गुलाम भट्टी की गेंद पर, और ये सामने जारहाना शॉट खेलते हुए कैच आउट हो गए हुसैन तलत के हाथों इसरारुल्लाह, और फिर आमिर अजमत आ गए। आमिर ने अपनी अजमत दिखा दी। यहाँ धचका जरूर लगा था जब 2 विकेट्स गवा दी थी, लेकिन क्या ही शानदार फिनिश किया है। इससे बेहतर बैटिंग हमें देखने को नहीं मिली है इस टूर्नामेंट में। आखिरी 5 ओवर्स में 75 रन बनाए इस लोग पेयर ने, और ये बहुत ही शानदार कैच रहा है। इस टाइम पे ऐसा लगा था शायद बलूचिस्तान कमबैक कर लेगा, लेकिन किसी को नहीं मालूम था कि आमिर अजमत और सरवर इस तरीके की धुआंधार फिनिश करेंगे। और थोड़े उनके मदद में भी मिली खराब बॉलिंग जो केपी ने की, और ये मॉडर्न डे क्रिकेट खेलते हुए नजर आया। हमें पैडल स्वीप हमें देखने को मिला, हमें सामने को बड़ी हिट्स देखने को मिली, और कुछ खराब फील्डिंग ने भी साथ दिया उनका। किस्मत की देवी भी मेहरबान रही, एजेस भी उनकी फेवर में जाते रहे, क्योंकि आप जब दलेर होते हैं तो आपकी फेवर में चीज़ें जाती हैं, और यही हमें देखने को मिला सरवर और आमिर की इस पार्टनरशिप में, और अपनी टीम को वो 201 रन तक ले गए। खैबर पख्तूनख्वा की टीम अब तक नाकाबिल शिकस्त है, और क्या वो 202 रन तक पहुंचने में रोक सकेगी बलूचिस्तान को? इसका जवाब हमें मिलेगा एक वक्फे के बाद। Welcome back to the Pindi Cricket Stadium. Match 15 rather, Balochistan versus KP, and a high-scoring game. First time in this season we've seen a score past the 200 mark, and KP, with no surprises, have done that. Look at that, everyone contributing. Haris didn't have a good outing, but finishing off well. 38 of 11, Sarwar and Azmat 22 of 13, really took them in top gear. Balochistan's bowling was exposed heavily against a formidable KP side. Economy, they all went for it. Kashif Bhatti, the only one with 2 wickets and 6.2 economy. 2 wickets for Haris and 1 for Khurram Shahzad. They'll have to work hard for that 201. They need more than 10 runs and over consistently throughout the 20 overs in order to chase this down. KP, pretty sure that they did not expect this, because they were talking about 160 at the toss, or a little above that. 74 scored in the last 5 overs by KP. They really smashed the living daylights out of the bowlers in the end. Balochistan had fair share of troubles when it comes to death bowling.
And today, the way server especially played, it took Junaid Khan to clean us. Hasibullah, a lot depends on him. They need a decent start, and by decent I mean they have to utilize that power play. They cannot afford any quiet overs in this run chase. Asad Shafiq, he's been in a good form, but haven't seen big innings. Maybe today things can turn around for him and for Balochistan as well. It'll be an interesting chase. If they can replicate what we saw yesterday from ATF Southern Punjab, attack the opposition in the power play, try to cover up for that damage they have caused themselves in the last 5. So Asad Shafiq or Hasibullah or even Shan Masood, maybe we'll see a little promotion in the order. Try to get as many as possible in the power play so that you just relieve a bit of pressure on yourself. Go about normally from 7 to 15 and then again go mad. KP's got a good list of bowlers. Imran Khan Senior to start. They're going to test the limits, but Balochistan, they need to have an intent to chase it down. It's going to be interesting. Here we go. Straight away off the mark with probably a leg by the 202 to win this match for Balochistan. You have to go after the bowling. Pick their bowlers, attack them in the power play. We've got 3 pacers who will be operated early on. Such a Shafiq, pretty decent. And it's a good surface. I don't have to say that because the way KP batters played never looked like they were in any sort of trouble. Hasibullah, Asad Shafiq both love to come out and display their stroke play. Just the intention and how badly they want to win this one. That's the push. Backing the off field. A huge gap into the leg side. Edged and taken. Great catch, and Asad Shafiq has to walk. He went hard at the ball. It was swinging away from him. Took enough part of the bat to claim the first blood. What a start. What a start for KP. Imran Khan hitting the perfect length and enough swing to just allow that edge flying, and look at that catch. Haris, he's been exceptional behind the wickets. That's a delight for any fast bowler. A genuine outswinger, edged and gone. Asad Shafiq gone on not. Balochistan in trouble straight away. 1 for 1 down. Four balls to come. Right arm over. Covering leg stump. Abdul Wahid Bangalzai at number 3. Talented batter. And he looked to attack. Forget about what's happened. You got a job on hand, so you have to attack the opposition. Take the fight back to them. It'll be interesting to see how these 2 youngsters adopt to the situation on hand. That's the wicket. Outside off stump, he was chasing it. He thought it was a scoring opportunity, had to go, but the feet never moved. But Haris, have a look at that, diving on to his right, full stretch dive. Always a delight to watch keeper going for a catch like this.
That's exceptional. Flying high, one-handed catch. Haven't seen that from a keeper so far in this tournament. Haven't been good sights from the keepers. But this one, you can watch it again and again on a replay. Nice shot. Slightly short in length and put away around the mid-wicket area. That's got to be 4. Good effort though. The fielder has signaled it himself. Well, they have to move on. It doesn't matter if they're 1 down. They have to keep on pushing whatever they can out of this power play. Bangalzai Hasibullah, they have been decent with the bat. Have a look at that for the effort. They are committed. But this one, yep. Clear indication, touching the cushions. Want to come? Will he pitch it up again? That's more like it. Shorter length hasn't really worked here. Allows enough time to the batters to pull that away. 7 for 1. Middle lena sir, middle. Middle? Towards you slightly. It is middle. Thank you. See? Right arm over. Arshad Iqbal, I like him as a fast bowler. Comes in hard. It's the good length area. Got a bit of swing. Flippin' for Hasibullah as well. Got deep square leg. And third man at the boundary. Hunting for wickets. That's how KP will go. Arshad Iqbal. Shot. Hasibullah has played many of those in this season. Is no exception. Beautifully done. Effortless. The intent, it's clear. Staying in his stance, that allowed him to free his arms. It was smashed had. Fielder had no chance. We look at that. Just enough width. Stand tall. He loved this area. He can loft it up. He can play along the ground. Has some role to play. And another one. 2 balls and 2 boundaries. Pressure on the bowler. This time squarer. Not a good start for Arshad. He's pitching it up, that's good. But the room outside off stump. It's freebie. He will go after it. This time just played it a little late to pierce that gap. Opening the face of the bat. Yeah, he knows that. Have the opportunity to put pressure again and again. Keep the batters in check, but this length that has made them to take the slip out. Yeah, and third man comes in the circle. The backward point is in place. He's decided to come round the wicket. That is a little different thing, because spoke about this earlier. We hardly see bowlers now trying to change the angle. In this occasion, he's trying to come round the wicket to shape it into the left-hander. Try to stay closer to the stumps. He's trying to cut the angle, ramp him for room, but with this angle, I think it's better off he can bring back the point into the circle and maybe give a little bit cushion into the leg side.
Upish, but will be safe because now the fielder is in the deep. Covering. Right arm over, 2 to come. Nice looking shot, well fielded, sent back. It was hit so well that even a single wasn't available. And that sound, for a moment, I thought will travel to the boundary. The ball just came back in, went straight to Khalid Usman. These two can hit boundaries, that's for sure. Hasibullah and Bangalzai. And they have to keep that intent going. It's in the air. Khalid Usman running backwards. Will he get there? Yes, he does. Wicket number 2, and Arshad Iqbal, after being hit for a couple of boundaries, gets his man. AWB has to walk back. Balochistan batters are under pump for sure, and they cannot stay quiet for a long time. Trying to play it into the leg side, but the length wasn't there. They stood up, goal tall on him, and a well-judged catch by Khalid Usman. He has redeemed himself. Arshad Iqbal. Abdul has to take the walk on 5. Balochistan 16 for 2. क्रॉसिंग नहीं हुई वो पूछ रहा है नहीं उसको समझ नहीं है New batter in, Shan Masood, 32 years of age, lots of experience and in sublime form. 16 for 2. He wouldn't be bothered much about that. He'll be looking to get runs from the opposition. He's the key, basically. This wicket, KP knows, has the result in it. You can get Shan Masood early, and then you're talking. At the moment, Hasibullah is on strike. 202 to win. Wild swing outside off stump. Good bowling again, hitting the deck hard. Wanted to club it into the leg side. Never got in that position, and Khalid Usman running back. It's a good catch. Shan Masood, as you said, is the key. Early on, I was having a talk with him regarding the surface, and he said you have to play some clever cricket to score runs. It's not all guns blazing, but today, not just clever cricket, you have to maintain a certain run rate. Pulls it and gives it to mid-on. Wicket number 3. Hasibullah goes. Didn't get hold of it at all. They're falling like cards. Hasibullah this time, he saw an opportunity to hit a boundary, but he never executed it well. It was way outside off him, did fetch, but straight to the fielder. Kamran Ghulam with no mistakes there. KP is all over Balochistan. Another one gone. 3 down, Balochistan on 16.
Haris Sohail, experience, walks out and joins Shan Masood. Both the batters haven't faced a delivery yet. Things have changed. Balochistan are 3 down and they're just looking at 16 runs on the board. And we are just in the 3rd over. There's the pressure of the chase, 202 to win. We've got a white first slip, or you can call it the second slip. And then there's a short third man as well, guarding the rare. Imran Khan Senior, just the angle, it kept going away from Hasibullah. There was a flat batted shot. Even couldn't clear the third 30-yard circle. Probably could have opted to play it upish. Aim quickly and went even quicker. Kamran Ghulam. 2 senior pros now. Shan and Haris in the middle. Have to break some momentum for KP. It goes over third man. And that'll be 4. It's just the intent. Anything loose, they will go and put it away for a boundary. Clearing his front leg. He loves to do that. I'll pick it on its way. They need some change in plans. Probably just rotate strike. Don't allow KP to tighten the screws even more so. Some role to play now. This partnership will be crucial for Balochistan. This time straight. What a shot. Shot of authority. They're not going to give up. Haris Sohail, whenever it's in his zone, he will go after it. Wasn't a bad delivery as to say, but again, the length allowed him to free his arms through the line. That front leg gives a lot of leverage to him. That's a good hit down the ground. Ball checked. Let's hope he doesn't get carried away. By his teammates. Well, they have to get carried away. They need 202. But it should be sensible. We know all very clearly every ball is not to be hit for a 6. Choose them. 3 gone. 26 for 3. हेलमेट के अंदर ये मक्खी इस तरह घूम रही थी नेक्स्ट अप कवरिंग bowling change है I think Tariq saw himself on the big screen, giving his best smile. There. He takes a look again at the screen. Arm around. Yes, you are. And there comes the whole gang. Under pressure, Ali. At the moment, no, he's smiling. It's quite pleasant, actually, Marina. I mean, we know that sun does shine pretty bright over here, but there's a wind blowing, and as the day passes by, it starts getting cooler because we're entering winters. And by the end of October, is it that we'll have a nice cool breeze? Yes, for sure. This breeze definitely helps to cool down things. Speaking of 200 runs or chasing them, highest successful chases here at Pindi have been twice. Southern Punjab did it versus Sindh in 2020. They chased and got 217 in 19.4, and then Northern did it against Central Punjab in 2021. They scored 201 for 4 in 19.4 as well. This happened twice on this ground, but they were day-night games, so maybe dew factor came in, chase became easy. But
even if there's due or no due, it requires a bit of an extra effort to chase down 200. Bowler and out they go. Trying to get a couple out of it. Wasn't there. They were just strolling. If you want to push hard, you have to take the first run very quickly. Have a look at this. Both not committed on the second one, and all of a sudden they realize there might be a chance. But they had to abort it. We've seen teams chasing down 200 plus, but it's a whole different ball game when you're 3 down on 29 and 3.3 overs. You've lost your top order. You've got the resources, yes, but they need a plan. Shot. Some good shot stroke play from Haris Sohail. The three shots he's played, he means business out there. Glorious shot there, using the feet. It read the length really well, just enough room created. Inside out. Always a delight to watch this shot from a left-hander. Didn't try it. And again, not really sure bringing Adil Amin at this stage in the power play is such a good idea. He's being taken to the cleaners at the moment from what we've seen. It's got plenty of options. I mean, Imran Jr. was there. He was pretty decent. Spinners haven't had a much say today. We've seen Yasir Shah really couldn't bring any purchase out. Again, he goes wide and then smashes that over. Extra cover for a maximum. The only reason I'm looking at is that he's trying to bring in this off spin up because two left-handers are batting, but they are different class altogether. 43 for 3. Imran Khan Jr. is the change being brought in by Khalid Usman. This change can work for KP because with the lack of pace and the variations he offers, it won't be easy to hit him out. So Haris Sohail and Shan will have to be a touch careful where they want to extract those boundaries. Right now, power play is still on. We've got 2 more overs. He's got a third man and a deep square leg. Good running, testing the fielders. Adil Amin, he didn't prove anything for KP. Haris Sohail is very assertive against spinners. He has all the range of shots coming down the track, lofting it over the offside, sweeping it off the back foot. These two are really decent against spin attack. You have to be very wise how you operate your bowlers. One thing to have the resources, but against what type of batters you're trying to use it, that's a whole different case. That's a one-handed shot, but he'll still get the maximum. Haris Sohail
has come with a target in his mind, and that is to get as many as possible in the power play. 50 up for Balochistan. Well, he's taking the attack back to KP. It was way outside off stump. Wasn't that convincing and had enough on it to travel and clear that infield. The fielder was inside. Had no problems there. They're going after it, and that's one way to do it. Only there's some very ordinary lines in bowling from KP fast bowlers. They're providing the width, they're bowling a shorter length, and he's just using the horizontal bat and he's playing it at will. Now that's better. Standing very deep in his crease, Haris. Anything slightly on a shorter side, he'll go after it. This is good cricket, really good cricket. They will test the fielders inside the circle. Both are pretty decent between the wickets. Got Hussain Tallat to follow, Ahmad Bhatt, Kashif Bhatti, Yasir Shah himself. All of them can bat. But right now, this partnership, that's really important. Haris came out attacking, scored 32 just off 10. Khan probably will play the anchor innings. It's an excellent ball and well played. You talk about KP, 4 games out of 4, and they've looked very good in commanding positions. They fought hard. We talk about winning percentage of a team in national T20s. Since 2019, KP is the second team with the highest win percentage in that list, 61%. Northern is number 1 with 64%. But KP has been winner twice of the national T20, been semi-finalist once. So they have the second highest win percentage. So it's a habit, basically. One shouldn't be surprised if KP is performing the way they are. He's corrected his mistakes very quickly. Imran Jr. attacking the stumps, end of the over. 5 gone, 52 for 3. हाई टॉप ऑर्डर को बड़ी जल्दी ठिकाने लगा दिया इमरान खान सीनियर और अरशद इकबाल ने। हसीबुल्ला खान डबल फिगर में वो मुश्किल दाखिल हो सके। हारिस सुहेल ने अलबत्ता अपने एंड से अब तक जो अंदाज अपनाया है वो फाइट करने के मूड में लग रहे हैं। 11 गेंदों में 32 रन बना चुके हैं। 3 चौके और 3 छक्के उन्होंने लगाए हैं। इससे ने 50 रन को पार कर लिया है। बलूचिस्तान ने 5 ओवर्स में ही। और बॉलिंग की इब्तिदा शानदार कैच से हुई। असद शफीक इन फॉर्म थे। बड़ी आला डाइव की मोहम्मद हारिस ने। उसके बाद ये भी बड़ा उम्दा कैच था। इस सामने पवेलियन के जाकर खालिद उस्मान ने लिया। फिर फुल शॉट खेलने के लिए गए, सीधा हाथों में मार बैठे हसीबुल्ला। और ये बड़ी अहम विकेट थी। आदिल अमीन
का इकलौता ओवर खासा महंगा रहा, जिसमें हारिस ने उनकी पिटाई की। इमरान जूनियर ने अभी तक 1 ओवर किया है। अरशद इकबाल अब बॉलिंग करेंगे पवेलियन एंड से। अच्छी बैटिंग पिच है, रन्स अभी भी हो सकते हैं, खासतौर पर जिस तरह की फॉर्म इन दोनों ने दिखाई थी पिछले मैच में। ये इस टीम के 2 सबसे आजमूदाकार और माने हुए खिलाड़ी हैं वाइट बॉल क्रिकेट में, हारिस और शान, इसलिए ये मुकाबला खत्म हुआ नहीं। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन एक चीज़ जो बलूचिस्तान के हक में नहीं जाती है वो कि इनको फ्री रन्स नहीं मिलने वाले हैं। ड्रॉप कैचेस हमें नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि केपी की साइड बहुत शानदार फील्डिंग साइड है। तो आपको हर रन के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, बनाने पड़ेंगे रन्स ढूंढने पड़ेंगे, बड़े हिट मारने पड़ेंगे। फ्रीबीज आपको नहीं मिलेंगी केपी के खिलाफ। यही मुश्किलात शायद मुझे बलूचिस्तान में जो फ़र्क नज़र आया है वो यही लगता है। यही सितम भी है आज। सितम बाला है। सितम ये था कि बलूचिस्तान ने ना सिर्फ कैचेस गिराए बल्कि उनकी ग्राउंड फील्डिंग का म्यार भी वैसा नहीं था। पीछे हटकर जगह बनाई, गैप ढूंढ निकाला और गेंद बड़ी तेज से चली है बाउंड्री को और उसने शिकस्त दे दी पॉइंट के फील्डर को, जो लंबे लंबे डग भरते हुए इसके ताक़ुब में निकले थे। बड़ी शानदार बैटिंग हारिस सोहेल की। जी हाँ, लेजी एलिगेंस, बहुत शानदार तरीके से बस टाइम किया है, जोर से नहीं मारने गए और प्लेसमेंट भी शानदार रही दोनों फील्डर्स के दरमियान से। कोशिश जरूर की थी साहबजादा फरहान ने। और ये ऐसी पिच है तारिक भाई जो सूट करेगी हारिस सोहेल के स्टाइल को, क्योंकि उतना तेज पिच है नहीं, थोड़ा स्लो है जो हमने बाकी पिचेस देखी हैं। और इस तरीके से जैसे हारिस खेलते हैं, वेट करते हैं, लेट खेलते हैं, तो ये सूट करेगी हारिस को। यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं हारिस से एक बड़ी इनिंग। यही वजह है कि शान मसूद हैं, वो अपना वक्त ले रहे हैं आज इस विकेट से हम आहंग होने के लिए, और चार्ज करने की जिम्मेदारी हारिस ने अपने सर ली है, क्योंकि अपनी फॉर्म वो बहाल कर चुके हैं पहले ही। ऐसी लंबी बैटिंग लाइनअप है अभी। हुसैन तलत, दस्याब हैं, अम्माद भट्ट, काशिफ भट्टी, यासिर शाह, ये सभी जो हैं वो हाथ बटाने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन ये देखिए अरशद इकबाल इससे भी बाउंस जो है एक्सट्रैक्ट करने में कामयाब हुए। यही इनका खासा है, यही जो है राज है इनकी विकेटों का। किंगडम वैली एक रॉयल लाइफस्टाइल, आप जा सकते हैं उनके फेसबुक पेज पे और जीत सकते हैं बहुत सारे एक्साइटिंग प्राइजेस, और आप हो सकते हैं अगले विनर। आपने आगे जिक्र किया हारिस सोहेल का कि बलूचिस्तान एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि ये रन्स करें, और ना सिर्फ ये फॉर्म में है, इनफैक्ट पूरा पाकिस्तान होप कर रहा है कि हारिस वापस अपने जैसे स्टार्ट किया था करियर उस फॉर्म में आ जाएं, क्योंकि बहुत ही शानदार मिडिल ऑर्डर बैटर हैं और पाकिस्तान टीम को मिडिल ऑर्डर में थोड़ी मुश्किलात भी हैं नेशनल साइड को। इनसे बेहतर चॉइस कोई हो नहीं सकती, और ये सिचुएशन यहाँ टेलर मेड है इनके लिए। अपनी फॉर्म वापस करें, फिटनेस बेहतर लग रही है, तो ना सिर्फ हम बल्कि पूरा पाकिस्तान होप कर रहा है कि ये अपनी फिटनेस और फॉर्म बहाल करें और पाकिस्तान टीम में जगह बना सकें। कुछ मुख्तलिफ ये लगे भी हैं अब जो इनका अंदाज अब तक रहा है। बॉलिंग भी करना चाहते हैं, फील्डिंग में भी पहले से बेहतर कोशिश कर रहे हैं। विकेटों के दरमियान जो है दौड़ने की भी एक आरज़ू नज़र आ रही है। डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि इनके साथ जो एक मसला लगता है, टैलेंट कभी भी इनका मसला नहीं था, ना ही रन्स या फॉर्म इनका इतना मसला रहा है। हम ये कह सकते हैं कि उतनी ज़्यादा कभी कभार भूख नहीं लगती क्रिकेट की, जो कि एक आरज़ू होनी चाहिए होती है एक बैट्समैन में। तो लेकिन अभी भी ये इस टीम में कमबैक कर सकते हैं। अगले साल भारत में वर्ल्ड कप होना है, ये स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं और वहाँ इन जैसे ही बैट्समैन की पाकिस्तान को ज़रूरत होगी मिड ओवर्स में। जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने, इसीलिए कह रहा हूँ पूरा पाकिस्तान होप कर रहा होगा। बहुत शानदार लेजी एलिगेंस है इनके अंदर एक। जब ये नए नए पाकिस्तान टीम में आए तो पूरा पाकिस्तान खुश था कि एक हमें बहुत ही सॉलिड मिडिल ऑर्डर बैटर मिल गए। यहाँ पे इनटू द पिच स्लोअर वन किया अरशद इकबाल ने। काफ़ी चलाक बॉलर हैं अरशद इकबाल भी, हर तरह की पिच पे अच्छे बॉल करते हैं, बहुत जानदार तगड़े बॉलर हैं।
और एक अहम बॉलर हैं ये केपी की साइड का। ऑल्दो इससे पहले समीन गुल इनका साथ निभाते थे, उनकी कमी भी डेफिनेटली इनको महसूस होती है, लेकिन ऐसी उनकी टीम है, जिस तरह से वो खेलते हैं क्रिकेट, प्लेयर्स आने जाने से उनको फर्क नहीं पड़ता है। उठाकर खेला, ये पावर प्ले की आखिरी गेंद थी और इसमें बाउंड्री पाने के लिए गए और अपील दर अपील फिर अपील हुई, लेकिन अंपायर ने ये बिल्कुल सुनी अनसुनी कर दी। बल्कि यूं कहना चाहिए कि अंपायर आसिफ के कानों पर यूं तक नहीं रेंगी। ऐसा लगता था कि दो आवाजें आई हैं, क्योंकि आमतौर पर ऐसा रद्द-ए-अमल भी देखने को नहीं मिलता केपी के क्रिकेटर्स की तरफ से किसी अपील के रद्द किए जाने पर। जहाँ काफी सरप्राइज हैं, रादर शॉक्ड हैं केपी के फील्डर्स। खालिद उस्मान भी पूछते हुए कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। और बड़ी स्क्रीन जो कि स्टेडियम में मौजूद है देख रहे हैं मोहम्मद आसिफ। वैसे तो अंपायर अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पे दोबारा एक्शन रिप्ले देखेंगे तो हम बेहतर पोजीशन में होंगे कुछ बताने की। 59 पर 3। हाँ बल ताकत हो दे बल ताकत पावर प्ले का आगाज असद शफी की विकेट से हुआ, जो दूर से ड्राइव करने के लिए गए और उसके बाद मंगल सही जो हैं एक बार फिर नाकाम हो गए। अच्छा शुरू किया था इन्होंने ये टूर्नामेंट, उसके बाद जो है मंगल सही गए, साथ साथ हसीबुल्ला भी, लेकिन हारिस आज उनका वही पुराना रूप देखने को मिल रहा है। उन्हें फ़ायदा उठाया ख़ासतौर पर स्पिनर्स की मौजूदगी का पिच पर और उनकी अच्छी खासी पिटाई कर दी। वही स्पिनर इस वक्त दोबारा आ रहे हैं कार्रवाई का हिस्सा बनने के लिए। आदिल अमीन एक बार फिर नजर डालते हैं आखिरी अपील जो आखिरी बॉल पे हुआ। काफी जोरदार अपील थी, हैरान और परेशान कर दिया केपी के फील्डर्स को। वो श्योर थे कि शायद बल्ला लगा है बॉल को, लेकिन जैसे आपने कहा दो आवाजें आई, में भी शायद बैट पैड को लगाओ उसी टाइम पे। एक्शन रिप्ले देखेंगे तो हम बेहतर बता सकेंगे। बहुत ज्यादा दोनों पर अपील नजर आई थी और ऐसा लगता है गेंद जो है बल्ला जो है देर से जरूर आया। जहाँ शानदार डिसीजन रहा अंपायर की जानिब से, क्योंकि बहुत दूर था बल्ला, पैड से भी बॉल से भी। क्योंकि इस एंगल से तो यही लग रहा है कि बल्ला दूर था। और शायद ये गुमान गुजरा हो कि ये उल्टा बल्ला न लग गया हो। ये खासा दिलचस्प है। ये इसकी जो अगली वीडियो हम देखेंगे मजीद आहिस्ता करके, ऐसा लगता है बैक ऑफ द बैट लगी है। उल्टा बल्ला लगा था और उसी वजह से ये बिल्कुल जायज़ अपील थी। और हारिस के चेहरे पर फौरन मुस्कान आ गई थी कि वो देख रहे थे इनके लिए बल्ला उल्टा नहीं था। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। और जितनी एलिवेशन ले ली थी, जितना बॉल ऊंचा चला गया था, वो सिर्फ पैड से नहीं जा सकता था। तो यहाँ पे गलती जरूर होगी आसिफ से, अंपायर से। और शान जैसे बैटर को आप अगर चांस दे देंगे तो वो बहुत भारी साबित हो सकता है। और यही शायद ये जो रिएक्शन है आपको बता रहे हैं कि बड़ी विकेट है शान मसूद की, प्लीड कर रहे थे, लेकिन आसिफ अटल रहे अपने फैसले में। लेग साइड में खेलने के लिए जल्दी खुद को कमिट कर लिया। यहाँ पर मोहम्मद हारिस ने एक नई जिंदगी मिली है शान मसूद को। शायद इस तरह का एक ब्रेक दरकार भी था बलूचिस्तान को आगे बढ़ने के लिए। शान मसूद आज बाउंड्री नहीं लगा सके, 9 गेंदें अब तक खेले हैं। क्योंकि वो पावर प्ले की आखिरी गेंद थी तो इन्होंने उस मौके को गनीमत जाना कि यहाँ पर बाउंड्री हासिल की जाए। और पहली बार नहीं है कि शान को यहाँ पे बेनिफिट दिया गया है। इससे पहले भी हमने देखा
सिंध के खिलाफ एम्पायर राशिद राज की एक अपील हुई जो उनकी फेवर में गई, तभी सिंध बहुत शॉक्ड में थे और यहाँ पे केपी भी बहुत शॉक्ड हैं और दोनों ही में लकी रहे हैं। मैं कहूँगा यहाँ पे 7 ओवर से इख्तिताम हुआ, 64 पर 3 बलोचिस्तान। नहीं दे रहा शाम पॉइंट चेंज राइट arm over left arm bowling middle edge ball। मुश्किलात यहाँ पे केपी के लिए थोड़ी सी ये है कि एक बॉलर शॉट खेले हैं इस मैच में। वो इससे पहले माज खान टीम में थे जो कि एक रेगुलर लेग स्पिनर हैं, उनको बिठा के एक बैट, और अगर किसी एक का भी बुरा दिन हो तो मजीद खराब हो सकता है मैच। यहाँ तो 5वें बॉलर के जो ओवर हैं उसमें सर्वर भी हाथ बटाएंगे। एक मैच में तो इन्होंने अच्छी खासी बॉलिंग कर दी थी, 4 ओवर जो हैं ये पूरे ही इनसे खालिद उस्मान ने करा दिए थे। आज बैटिंग में भी इनका अच्छा पहर गुजरा, के बाद शायद कप्तान को ख्याल होगा कि ये बॉलिंग में भी विकेट हासिल कर सकते हैं। अच्छा कंट्रोल है। बोल्ड हो गए, स्किड करती हुई आई गेंद और उतनी ज्यादा उठी नहीं जो कि तवक्को थी हारिस सोहेल को, और ये इनामी विकेट है खैबर पख्तूनख्वा के लिए। खतरनाक साबित हो सकते थे हारिस। ये देखिए अपना चौथा चौका लगाना चाहते थे लेकिन उनका वार खाली गया, लेकिन आफरीदी का बिल्कुल नहीं। मैंने आसानी जरूर कहा था लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि उनको गलत शॉट्स खेले जाएं। इसी तरीके से खड़े खड़े खेल गए, फुटवर्क नहीं। तो अगर आप ऐसे शॉट मारते रहेंगे तो कोई भी बॉलर आप पे हैवी हो जाएगा। 65 पर 4। हारिस सोहेल सहल पसंदी का शिकार हुए और उसी सबब अम्माद भट्ट को 8वें ओवर में खेलने के लिए आना पड़ा। हुसैन तलत से आज इनको पहले भेज दिया गया है क्योंकि बैटिंग ऑलराउंडर हैं, ये बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, लेकिन हुसैन से पहले आए हैं। 492 रन्स बनाए हुए हैं। हालांकि एक वजह यही समझ में आती है इनको हुसैन तलत से पहले भेजे जाने की कि ये दाएं हाथ से खेलते हैं, तो बाएं हाथ से खेलने वाले शान पहले से मौजूद हैं, तो इससे ये जो कॉम्बो है लेफ्ट राइट कॉम्बो इसको बरकरार रखना चाहते होंगे यासिर। और ये देखिए ये सहल पसंदी का शिकार हुए। यहाँ बहुत ही लेजी शॉट, ऐसा जैसे थक गए थे। अगर इसको बॉलर के सर के ऊपर से मारते तो बेहतर अप्रोच हो सकती थी, क्योंकि पार्ट टाइमर्स को तो आपको ओवर्स यूज करने हैं। यही डिसअपॉइंटमेंट शायद इनके चेहरे पे, क्योंकि शॉट सिलेक्शन गलत थी, खराब थी। यासिर शाह इस वक्त ज्यादा सुखिया नहीं है। बलूचिस्तान की टीम को अब बड़े पापड़ बेलना पड़ेंगे इस 202 के हदफ तक पहुंचने के लिए। आज पहले हाफ में ही इनकी टीम बुझी बुझी नजर आई, नई गेंद पर उस तरह का अटैक। शॉट मार के आउट हो गए। अब अमाद भट्ट पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके बाद हुसैन तलत को बैटिंग करने आना है। अतक अच्छा ओवर रहा है मोहम्मद सरवर का, सिर्फ 3 रन उन्होंने दिए हैं। रन बनाने की औसत को वो खासा नीचे ले आए हैं।
अहमद भट्ट अपने पास ही रखेंगे। अगले ओवर के लिए स्ट्राइक 68 बलोचिस्तान। शिमाल में होने वाली बारिशों के बाद मतलब साफ है, गर्मी उतनी शदीद रही नहीं जितनी कि एक हफ्ता पहले तक थी। ये टूर्नामेंट जो है उसका आखिरी दिन है आज। जो पिंडी का मरहला है ये मुकम्मल हो जाएगा। इसके बाद तमाम टीमें मुल्तान का रुख करेंगी। मुल्तान में हमें मुख्तलिफ पिचेस देखने को मिलेंगी। वहाँ पर इतना ज़्यादा पेस और बाउंस नहीं होगा। स्पिनर्स भी प्ले में आएंगे और बैट्समैनों को कि मुख्तलिफ अंदाज से खेलना पड़ेगा, कदरे रुक कर भी। खालिद उस्मान आ गए हैं बॉलिंग करने के लिए, लेकिन यहाँ अच्छी पिचेस थी, अच्छे इंतजाम थे टूर्नामेंट के और आला क्रिकेट भी हुई। जहाँ दाद देनी होगी यहाँ पे ग्राउंड्समैन को। बहुत ही बैलेंस्ड पिचेस हमें देखने को मिली हैं। कुछ पिचेस ऐसी हैं जहाँ पे पेस और बाउंस है, कुछ थोड़ा स्लो पिचेस देखने को मिली हमें, कुछ बैटिंग फ्रेंडली, जैसे कल हमें मैच को देखने में मिली बैटिंग फ्रेंडली भी मिली। तो सबके लिए कुछ ना कुछ डेफिनेटली इन पिचेस में मौजूद था, तो दाद देनी होगी डेफिनेटली। और यहाँ पे तारिक भाई सारी टीमों को मिल के सोचना होगा कि केपी को कैसे पकड़ा जाए, क्योंकि पहले बैटिंग करते हैं तो रन्स बहुत कर देते हैं, चेज करने जाते हैं तो बड़ा रन्स चेज कर लेते हैं। बड़े स्टार्स मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी इनको हराना बहुत मुश्किल हो गया है। हर प्लेयर को उनका रोल अच्छे तरीके से मालूम है, यही इनकी कामयाबी का राज लगता है। बलोचिस्तान ने इनको मुल्तान में हराया था, उसकी अच्छी यादें हैं पाकिस्तान कप के फाइनल में। लेकिन आज ये टीम जो है फिर से नए अज़्म के साथ आई और यहाँ की ट्रू पिचेस पर पिंडी में उन्होंने संभलने का मौका दिया नहीं। और ये अच्छा शॉट यहाँ पर, लेकिन उससे भी आला कैच, बिल्कुल सामने हिट लगा गई साइड स्क्रीन की जानिब और बाउंड्री पर खड़े हुए थे आमिर अजमत। उन्होंने लाजवाब कैच लिया, सामने की तरफ डाइव करके अपनी रीच का फायदा उठाया और अंपायर यहाँ देखना चाहते हैं और इन पर नजर रखना होगी कि जमीर हैदर जो है सॉफ्ट सिग्नल क्या देते हैं टीवी अंपायर को रेफर करने से पहले। यहाँ एक और यंग क्रिकेटर, एक और बहुत फिट क्रिकेटर और एक और शानदार कैच। तो यहाँ पे अगर कोई भी यंग क्रिकेटर देख रहे हैं तो उनको ये मालूम होना चाहिए कि फिटनेस कितनी ज़रूरी है। सॉफ्ट सिग्नल अंपायर ने दिया कि ये आउट है और जैसा हमें पहली नज़र में लगा कि शायद ये क्लीन कैच ही है, तो एफर्ट के पूरे नंबर हैं यहाँ पे। यहाँ ये देखिए नजरें किस तरह उकाबी बिल्कुल गेंद के ऊपर हैं और हाथ बर वक्त लाने में कामयाब हुए। और इससे अगला जो मरहला है ये यहाँ तक कोई शुबा नहीं था, जब ये ज़मीन पर गिरे हैं गेंद के दाएं हाथ में पूरी तरह रह गई थी, बिल्कुल रह गई थी। जो कोनी भी जब लगी है तो कोई मसला दरपेश हुआ नहीं, अस्सी हद तक कंट्रोल में थे। बड़ी बड़ी इनकी उंगलियां हैं, इसलिए इनने गेंद को संभाल लिया। जी हाँ, ये कैच भी इस टूर्नामेंट की उस लिस्ट में जाएगा बेहतरीन कैचेस की। दिल खुश कर दिया, क्योंकि जब भी एक यंगस्टर ऐसी एफर्ट करता है तो ये देखने में बहुत शानदार लगते हैं। इम्तियाज इकबाल टीवी अंपायर हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस वक्त इनका पेश बाजू और कोनी लगी है, गेंद इनके हाथ में रही है, कोई शुबा होना नहीं चाहिए, क्योंकि इस एंगल से तो ऐसा ही दिखाई देता है कि यहाँ हुक्म जो है आउट का ही सुनाया जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये सुर्ख जो यहाँ पर 3 लफ्ज से शान मसूद उसी के नतीजे में गए हैं वापस 10 रन बनाकर।
आज ज़्यादा अच्छी इनिंग्स खेल नहीं सके। 9 ओवर मुकम्मल होने से भी पहले 5 विकेटें गंवा ली हैं 71 के स्कोर पे। इक्वेशन ये है कि बलूचिस्तान को मजीद चाहिए 131 रन। 67 बॉलों का उन्होंने सामना करना है और हुसैन तलत नए आने वाले बैटर हैं। मुश्किलात बहुत बढ़ गई हैं क्योंकि बहुत लंबा टारगेट है और बलूचिस्तान किसी को ब्लेम नहीं कर सकता है। इस बारे में बात जारी रखेंगे। 9 ओवर्स के बाद 72 पर 5 बलूचिस्तान। आज कैंप में मुश्ताक अहमद जो उनके हेड कोच हैं वो भी नजर नहीं आ रहे हैं। राजहंस हैं। यासिर शाह, परेशानी डेफिनेटली उनके चेहरे पे नजर आ रही है और किसी को ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि आगाज भी ठीक था, जल्दी विकेट हासिल कर ली थी हारिस की, लेकिन जिस तरीके से फील्डिंग की, जिस तरह लैप्सेस हुए, ऑल्दो शानदार कैचेस भी देखने को मिले, लेकिन उसके अलावा आसानी से रन्स बहुत दे दिए, सिंगल्स बहुत दिए, चौके भी दे दिए, कैचेस भी ड्रॉप किए, इसलिए इतना बड़ा टोटल हो गया। क्योंकि जब बैटिंग केपी की चल रही थी तो हमें लगा था कि शायद 170 165 तक इनको रिस्ट्रिक्ट कर लेना चाहिए था। तो 30 से 35 रन मैं कहूँगा अपनी फील्डिंग की वजह से बलूचिस्तान ने केपी को तोहफे में दिए। 2 ओवर आदिल अमीन कर चुके हैं। मोहम्मद सरवर का ये दूसरा ओवर है, तो जो 5वें बॉलर के जो 4 ओवर थे वो मुकम्मल हो जाएंगे, लेकिन ये छक्का हुआ चाहता है। अम्माद भट्ट जो इसी तरह की बैटिंग की शोहरत रखते हैं पेसर्स के सामने, इससे ऑफ द टोज उनने फ्लिक किया, बहुत ज्यादा कुव्वत सर्फ नहीं की, लेकिन टाइमिंग मिसाली थी। यहाँ शानदार पिकअप शॉट, यही शायद शॉट का इंतजार करना चाहिए था हारिस सोहेल को भी। और अम्माद भट्ट हम जानते हैं पाकिस्तान के बेहतरीन पावर हिटर्स में इनका शुमार होता है और यहाँ पे इनको सिचुएशन है, आइडियल सिचुएशन इनके लिए, क्योंकि मैच में बहुत पीछे हैं। यहाँ पे अगर अपनी बेस्ट बैटिंग करते हैं तो शायद करीब आ सकते हैं उस 202 रन के टारगेट के। आगाज तो बहुत शानदार है। आज एक पार्टनरशिप के अलावा विकेटें गिरती रही हैं। बलूचिस्तान की शान मसूद बॉलर के सर के ऊपर से हिट करने के लिए गए थे। आमतौर पर ये महफूज इलाका समझा जाता है, लेकिन आमिर ने फील्डिंग में अपनी अजमत दिखाई, जिस तरह से वो दौड़े और जिस तरह ये उनकी एंटिसिपेशन थी। काफी डिसअपॉइंटेड होंगे शान मसूद, क्योंकि आइडिया ठीक था, पहुंच भी गए थे बॉल पे, लेकिन बॉल लगा थोड़ा बल्ले के नीचे, इस वजह से वो एलिवेशन हासिल नहीं कर पाए। क्योंकि ये पिच थोड़ा मुख्तलिफ है, ये स्लो है। अगर यही पिच कल वाली होती है, इससे पहले वाली पिच होती तो शायद ये एग्जीक्यूट हो जाता शॉट। हुसैन तलत का अच्छा रिकॉर्ड है, 16-50, 123 की स्ट्राइक रेट और 80 इनका बेहतरीन स्कोर। आज जिस तरह विकेटें गिर रही थी, इनको पहले भेजा जा सकता था। नंबर 6 पर तो इन्हीं को ही आना चाहिए था। अब जब चिड़ियां खेत चुग चुकी हैं तो ये आए हैं खेलने के लिए। नंबर 7 को आप दोष दे भी नहीं सकेंगे। देखिए क्रिकेट में मिरेकल्स भी होते हैं। 2 दिन पहले हमने देखा सोहेल तनवीर सिंगल हैंडेडली आमिर जमाल के साथ मैच करीब ले आए थे, अनफॉर्चुनेटली जीत नहीं पाए थे। तो क्या ऐसा ही हीरोइक एफर्ट एक हमें देखने को मिल सकती है हुसैन तलत से, अम्माद भट्ट से? यासिर शाह बैटिंग कर लेते हैं, काशिफ भट्टी बैटिंग कर लेते हैं, तो शायद उस किताब से सोहेल तनवीर की जो इनिंग्स थी उससे कुछ सीखना होगा। यहाँ पे शायद करीब लेके जाएं जितना मैक्सिमम खेल सकते हैं। अम्माद भट्ट ने एक मैच जितवाया था 2019 में, जो नेशनल T20 कप इकबाल स्टेडियम में हुआ था फैसलाबाद में। उसका सेमीफाइनल था और सदर्न पंजाब के खिलाफ बड़ी लाजवाब इनिंग्स खेली थी, हारा हुआ मैच जितवा दिया था। और यहाँ ये अपनी विकेट हार जाएंगे क्योंकि जो केपी के फील्डर्स हैं वो फील्ड में गलतियां करने पे बिल्कुल आमादा नहीं। मोहम्मद इमरान जूनियर ने ये रनिंग कैच लिया और अपने कप्तान के चेहरे पर जो रौनक है उससे और ज़्यादा बढ़ा दिया।
अहमद 12 से आगे नहीं गए। जी हाँ, जैसे मैंने कहा कि आपको फ्री चांसेस, फ्री बीज नहीं मिलने वाले हैं केपी के खिलाफ। ना आपको कोई कैच ड्रॉप नजर आएगा, ना आपको मिस फील्डिंग नजर आएगी, आपको रन्स बनाने पड़ेंगे इनके खिलाफ। और यहाँ पे एक और विकेट गंवाते हुए बलूचिस्तान। दूर से शॉट खेलते हुए अहमद बट आउट हुए 80 पर 6। पिछले 2 दिन हमने बड़ी दिलचस्प क्रिकेट देखी थी, क्लोज मैचेस देखने में आए, लेकिन ये मिस मैच हो गया है। ख्याल यही किया जा रहा था कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान का सबसे बड़ा मैच होगा। ये 2 इनफॉर्म टीमें थी, लेकिन अभी तक ऐसा लगता है कि बलूचिस्तान की बैटिंग ने हथियार डाल दिए हैं। 81 पर 6 10 ओवर्स के बाद। Not at all a convincing scoreboard. Oh God, Balochistan, nothing on top order. Khan and Haris, those two were the last hope. Santhalat still finding out his way with the bat. The captain now in the middle, and that is the reason why. Outside off stump, never middled it, never got near to the ball. It flew straight to the fielder. Smiles on Khalid Usman's face, and why not? These are 2 different expressions or 2 different sides. Just tells you the story. 120 of 59. Pushing hard for the second. Will come back. Yasser is quick. They're not happy, KP side. That shows a lot of professionalism. Khalid Usman urging the fielder in the deep to cut off the second one, even though they know they're way ahead of the game. That's the running again. Big gaps there on the own side. Good thing for Balochistan is that not all is lost. You got to keep in mind that you got to get as close as possible to the target since you've conceded 201. You got to keep that net run rate in mind as well. You still got 10 overs, so there's no point just hanging around there. It's a strong appeal, but there's nothing there that the umpire says is coming off a bat. So yeah, you of course the first thing is to win. But you've also got to keep in mind the survival also provides you a bit of an advantage. Again running hard, but they won't get the second. After the Farhan was quick. Yeah, still, if they can manage and divide those overs and pick their ballers from KP side, Santhalat
Yasir Shah, they both can bat. Go as deep as they can. Few hiccups early on. I think probably Haris or Shan would have went deep. 11 gone. Balochistan 87 for 6. ये ट्राई कांट भाषागा दो नंबर बंद है चूड़ा यार दो नंबर Khyber Pakhtunkhwa, they are happy with how the things proceeded for them. 2 wickets for Imran Khan Senior, 2 for Mohammad Sabah, and Arshad Iqbal and Khalid Usman with 1 each. They managed to bag 6 wickets just on 87 after 11 overs. That's a very solid performance from KP. If you take an overall look of the chase over here, you get that feeling that this succumbed to pressure. Pressure is something that actually changed the way you want to play your game. They came out looking at 202 in their face. So then they had to go after everything, and that forced them to play shots that probably were not there. And when things just don't go for you, then one after another, everyone feels that this is his or her responsibility to, you know, score 36 out of an over, which doesn't happen every day. And it's just such a mental toughness. It's all about that. Yesterday we saw such a good start from ATF Southern Punjab in chasing, and they lost like 4 wickets over a span of 25 balls. There was a panic button in the dressing room. And by the time the sanity prevails, you've already lost the game because it slipped out of your hand. That moment is gone. Now, they're at the same stage almost, Balochistan, but the wickets column doesn't support them. They're 6 down. Pushing for another one. So if you look at the comparison, Marina, after 10 overs, KP were 83 for 1 and Balochistan were 81. There's 2 runs behind, but for 6. Cricket is a game of sessions, and that's why whenever you talk to a more professional or balanced side, they will always mention that how their batters are allotted certain overs, certain targets. You look around at power play, you know that, okay, you can afford 2 wickets, but this is the target you're looking for. You cannot score 200 in 1 over. What we'll do is I'll try and request our crew to squeeze in the wickets somewhere in the over, or maybe after this over, just to show you the kind of shots that were attempted. We know Hasibullah played something, he pulled one, but he couldn't find the gap. He couldn't find the elevation. It's a power play. Same Bangalzai just had to step out of his comfort zone too early into the innings, enforcing a shot and just skying it up in the air. A sharp ball. One of the over. One of the over. It's also how you approach as a team to a bigger total. Yes, it's T20 game, but it's not all about 4s and 6s. You can squeeze in doubles and singles into it. And again, it's per over thing for you or 2 over game for you. They really did not, what I can reckon, divide how are they going to approach this total. Played pretty straight on the bounce. 12 overs gone. It's 92 for 6.
let's look at the wickets. So this is the first one. His ball is swirling away. This is not his shot. It's not the length, but he wants to smash it. Good catch taken. It's there to be hit, but conviction is not there to clear the 30-yard circle. He tried, cannot hit everything out of the park. Chan Masood, that's a good catch taken. But it's just that what you see, the similarity here is that they are being forced to go for big shots on every delivery, which probably is not available to be hit. The comparison still is not really far apart. Just 8 runs. The wickets is the problem. So when you plan as a team to change, you say we'll go and attack in the power play. If that doesn't work, switch to plan B, take the game deep. But they kept on going. And the same result kept coming. Wickets fell at regular intervals. Oh, almost took that catch. He was wrong-footed. Haris tried his level best. Had he taken it, would have been one of the best. Yasir Shah is going to go after anything. Picked up the length. Oh, have a look at that. Just trebled towards his left, Haris, and then the last moment had to dive. Really couldn't pick. It went really quickly. It's just coming back to the point, when you look at Balochistan's batting lineup, you might think that chasing would have provided them some cushion for temperamental batters. Yes, it's a hard task, but again, when you look all over the world, the teams who like to chase down, it's more of a role definition thing for each batter. Combinations, they matter a lot. And how you pan out the total over to 20 allotted overs. So you cannot chase, as I said, 201 over. You cannot put everything out of the park. The opposition is there to bowl. But the resilience, that should be there. It's gone over. Hussain Talat can do that. It's just the bat has to talk. He hasn't really had the best of times. Like, the capability that he has is just a display of that. Powerful hitter of the ball. And the cross angle helping him play that shot. The fielder was in the circle. A lot of area to get runs from. Cleaning it up. 100 up for Balochistan. They're still fighting. Also think, Marina, when you look at KP's side, we all talk about how balanced they are, no big names, but this utility players, everyone can bat and bowl. So much variety and spoiled for choices. Khalid Usman, he himself bowls, bats down the order. Play it down to, it was a good stop. One thing I like about KP's side is that every player comes with in intent that what they can bring to the side. What they can do whenever they've got ball in their hand or bat, or even in field, you can see each and everyone giving 100%. The previous over, we've seen Khalid Usman shouting at the fielders patrolling the boundary that they are better than that. They should not allow second to the opposition. End of the over, 13 gone. It's 105 for 6.
बॉलर है आज बॉलर ही I was talking about KP, the bowlers out here. They've used 6, but tell you what, apart from Sahibzada Farhan, even Israrullah bowls, Amir Azmat bowls, Sarwar bowls, Kamran Ghulam bowls. So, apart from Sahibzada Farhan and the keeper, everyone's a bowler. And not just a bowler, proper. They can take care of at least 1 or 2 overs of theirs. So that's the utility that is available to Khalid Usman. Imran Senior, 2 for 16. Had a good start with the new ball. He's coming for his second spell. And he has changed ends. Yasir loves batting. Boundary. You may feel that he gets into some odd positions while playing shots, but he can do it well. Still got a test 100 in Australia. Pretty handy with the bat, no doubt. And he's taking any challenges that being presented by KP. This length, we're talking about it, has never worked on this surface, especially not on this one. Been punished again and again. Not a good start to the over for Balochistan. They've managed to bag a boundary off first delivery. And again, will they come back for 2? Oh, they're trying. Yasir had slipped a little bit, but the throw is at the wrong end. Good running. Took off quickly. And he knew there was an opportunity and he backed himself. Santhalat was always meant to come back. Oh yes, it did help. But this is the sort of intention you'll see from Santhalat and Yasir. They'll bring that resilience out. That's a tough length to hit. Hard lengths work because Yasir is getting a touch predictable. He's making room, trying to pull everything. So that's good, smart bowling there from Imran Khan Senior. Wide of the crease, just creating that angle, trying to cramp him for room. When you can do that on a short delivery, even with that sort of pace, it is difficult to get underneath it. You swing hard, and you'll be rewarded just like that. Pace on ball, 397 boundaries up till now. Takes Balochistan to 115. Turning out to be a good over for Balochistan. He's going to do that, not going to hold himself back. Imran Khan Senior is going so wide of the crease and the angle that he's trying to create. Was in the slot. He didn't get it onto the bat. Got a boundary though of that thick edge. He's trying to follow Yasir Shah. See how wide he goes. And dropping it short. Umpire says wide. It's way too short now. Trying 6 different lengths in 1 over. I think with someone like Yasir Shah, I mean, with all due respects to him, target the stumps. Sooner or later, there'll be a mistake. Because at this length, even if he puts bat to it, it may go in the air, but it'll just fly away. He's going to swing hard. And with this sort of field they have, third man in, anything wider or on a shorter side, there are runs to be offered. Trying to mix it up, not be predictable. Plays everything with a horizontal bat, Yasir Shah. Covers more surface area with the ball coming at him. Could have been a good tennis player.
backhand, forehand. Have a look at that. Imagine him as him holding a racket. See, this is a return serve. Pedra. Slower one. Couldn't put it away for 4. But he'll keep strike. It's 118 for 6. What crowd and watching the stars. Hot, yes, but passion never dies for cricket. Since we're talking about other sports, are there any rules you would, just for conversation, you would like to introduce in cricket? I know you're a firm advocate of substitute fielders. Too slow. Got all the time in the world to do that, exactly. Yeah, he had made up his mind, Hussain Talat. Got outside the line of the ball and elevated it over the keeper. And just reading the game well, he knew that Arshad would try a slower one back of the length. That's one area you can definitely earn a boundary when the fielders are up in the circle. He's looked really decent with the bat today. 17 of 11 deliveries. You were asking me if I would like to see, not substitutes, not the word. I'm talking about if you see a football game where you got a lineman standing and showing the jersey number, and you can swap a player at a given time in a game. Similarly, you could say you name your playing 11, and you also name 2 reserve players who can be active. So it's like the good old days you had the super sub. So what happens is, what I personally feel, when you say, you know, suddenly dew came, wasn't expected, and now your spinners are not working, they can't grip the ball, you can make that change according to the situation. You can put in a fast bowler, you sacrifice your spinner on that occasion. Similarly with the batting, you don't need a left-hander anymore. You suddenly feel that I need a pinch hitter, I got it. He has to be named. What that does is, that keeps the viewer very interested. Can they make that change? Can they bring this one in? And then it's available to both sides. Not just one. Both the teams playing can do that. They're not forced to change. They can if they want to. It just provides so much, you know, variety to the whole thing. You and I will be sitting and saying, okay, at this stage, they can probably just make Shoaib Malik active and get him. And this has been hit well. KP wouldn't want this happening to their bowlers because that just takes a bit of confidence away. They're 6 down. Yasir Shah is not a middle order batter. To be hit like this, you don't want this. You want this to be wrapped up. Yeah, either it has to be inside the body, the direction of that short delivery is very important because Yasir will play it all over like he does. And he did. This length, it's not actually going to bother. Like Imran Senior, just go wide, cramp him for room, direct that line into the body. But if you give him so much room to fetch it outside off stump or just walk down towards the leg side and create that certain room, he's going to punish you. That's just denting. So you're just talking about what I would like. I'm very surprised. Our statman tells me that the Big Bash has already introduced this, the X Factor player.
You select your 11 and you name a 12 and 13, two players who can be active, made active at any stage of the game. Halfway through. That's amazing. See, it just brings that extra excitement. Now, the players sitting in the dugout, they know they're not playing today. They're just serving water. But how about when they know that they can be called in again? Or some players sitting there telling the coach, send me in, I can finish this. In that case, we will not be sitting right now and saying Balochistan is done because they don't have any more batters. They can make someone active, provided they name that person as the 12th or 13th, whether it's a bowler or a batter. Yeah, it's a team game, so I think, again, we talk about role definition, we talk about utilizing players at certain avenue or scenario. This does open a lot of interesting facts. Coming back, and they'll make it. This partnership is just pinching KP a little bit. It's that irritation, that's all. 15 gone, 132 for 6. यार जल्दी करो यासर, ये हम मत ना करूं, करो ना जल्दी। मैंने क्या सर जी, अभी तो 5 हो रहे थे, अभी तो जल्दी क्यों करवा रहे? मेरा काम ही यही है। नहीं पानी हुआ तो पिएंगे सर, मैं क्या जल्दी करूंगा। 15 ओवर्स के इख्तिताम पे बलूचिस्तान ने बनाए हैं 132 रन, 6 विकेट गवा के। बैटिंग कार्ड पे अगर नजर डालें, स्टार्ट अच्छा नहीं हुआ। शान मसूद और हारिस सोहेल ने अच्छी पार्टनरशिप लगाई थी, लेकिन ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। और अब ये जो पार्टनरशिप है, ये पहुंच गई है 52 रन पे यासिर शाह और हुसैन तलत की, सिर्फ 5 ओवर्स में। तो एक होप कहीं ना कहीं से बलूचिस्तान के लिए क्रिएट करते हुए, क्योंकि अब 70 रन दूर हैं, 30 बॉलों का सामना करना है बलूचिस्तान ने। मुश्किलात तो बहुत हैं, लेकिन जिस तरीके से यासिर शाह कैप्टन इनिंग खेल रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। शायद सोहेल तनवीर से सीखा है इन्होंने कि मैच तब तक ख़त्म नहीं होता है जब तक ख़त्म हो ना जाए। मेरे साथ मेरे बेहतरीन दोस्त शाह फैसल मौजूद हैं। शाह फैसल, मैच ख़त्म नहीं होता है जब तक ख़त्म ना हो जाए। बिल्कुल अली, और इस मैच में केपी ने डोमिनेट ज़रूर किया है। T20 क्रिकेट है, पिछले 32 गेंदों पर 53 रन आए हैं, तो अभी 29 गेंदों का खेल बाकी है। और ये भी मत भूलिए कि ये दोनों टीमें तो टॉप पर हैं, पॉइंट्स टेबल पे कंफर्टेबल हैं, लेकिन रन रेट भी यहाँ पर ज़रूर खेल में आ सकता है। तो जितना डीप लेकर जा सकते हैं और मार्जिन को कम से कम रखें, वो अच्छा होगा बलूचिस्तान के लिए। ये बहुत ही स्मार्ट बॉलिंग है, चालाकी से बॉल किया है। और हम जानते हैं कि इमरान के अंदर वो पोटेंशियल मौजूद है। वेरिएशन बहुत कमाल की करते हैं, बैक ऑफ द हैंड डिलीवरी, स्लो बाउंसर्स बहुत कमाल के करते हैं। ये एक बार फिर बैक ऑफ द हैंड डिलीवरी, और ऐसे शॉट को खेलना, ऐसे बॉल को खेलना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल, और इमरान की अच्छी डिसेप्शन है। अली, अगर बात करें तो 15 ओवर्स के अख्ताम पर स्कोर देखे जाएं तो केपी के 127 पर 4 थे। उस लिहाज से बलूचिस्तान रन्स के एतबार से अभी भी उनसे आगे है, लेकिन जिस तरह केपी ने फिनिश किया, दाद देनी होगी। हुसैन तलत ने 2 की कॉल की है और 4 रन। कैचिंग इस टूर्नामेंट में बहुत शानदार रही है, लेकिन ग्राउंड फील्ड पे कहीं ना कहीं सवालिया निशान है। इतनी अच्छी आउटफील्ड पर इस तरह की आउटफील्डिंग की जो है वो कोई आप गुंजाइश नहीं है, कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकते। या शायद केपी वाले कहते हुए कि आपने हमें तोहफे दिए थे तो हम उनको लौटा देते हैं आपको, रन्स की सूरत में, बाउंड्रीज की सूरत में। खालिद उस्मान वैसे तो उनका शुमार पाकिस्तान के बेहतरीन क्रिकेटर्स में होता है, लेकिन यहाँ पे सही तरीके से पहुंच नहीं पाए। बहुत शानदार कप्तान भी हैं, ऑलराउंड क्रिकेटर हैं खालिद उस्मान। बॉल कर दिया,
यही खासियत है इस यंग फास्ट बॉलर की, इनके पास बेहतरीन वेरिएशन है। हुसैन तलत के पास ज्यादा चॉइस मौजूद नहीं थी, बड़े हिट लगाने ही लगाने थे और उसी असना में अपनी विकेट गवा बैठे। स्लोर बॉल यॉर्कर और फिर स्लोर डिलीवरी बैक ऑफ द हैंड। ऐसा लगता है बॉल गुगली हुई, अंदर आई हुसैन तलत के लिए और उनके पास कोई जवाब नहीं था। प्रेशर में थे, बैटिंग कम आई इस टूर्नामेंट में हुसैन तलत की। 24 रन बनाकर आउट हुए बलोचिस्तान 137 पर 7। तो जीता था। काशिफ भट्टी नए आने वाले प्लेयर होंगे, बैटिंग कर सकते हैं, लेकिन जो इनकी महारत है बैटिंग की वो 4 डे क्रिकेट की है। T20 क्रिकेट में हमने इतना कुछ उनको करते हुए देखा नहीं है। पोटेंशियल जरूर है, यासिर शाह का साथ देना होगा क्योंकि 65 रन है 26 बॉलों पे, हो तो सकते हैं, नामुमकिन नहीं है, लेकिन एक हेरोइक ऑफ एफर्ट चाहिए होगी यहाँ से इन दोनों में से किसी एक कैमियो खेलनी होगी अगर यहाँ पे बलोचिस्तान को करीब जाना है उस 202 रन के टारगेट के। ये तो एक मौजूदा होगा अली। 36 साल इनकी उम्र है। काशिफ भट्टी बैटिंग में 13 की एवरेज और 109 का स्ट्राइक रेट, कुछ ज्यादा खौफजदा नहीं करेगी मुखालिफ टीम को इस फॉर्मेट में। टूर्नामेंट की अगर ओवरऑल बात की जाए अली, तो जिस तरह मैंने कहा टेबल की बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, इस बॉल के बाद बात करेंगे। शॉट डिलीवरी, इसे पुल किया है शानदार तरीके से, ये बॉल चला जाएगा बाउंड्री के बाहर। एक शानदार आगाज अपनी इनिंग का किया है काशिफ भट्टी ने। जैसे हमने कहा कि पोटेंशियल बहुत मौजूद है, स्किल बहुत मौजूद है, सिर्फ एग्जीक्यूट करना है और यहाँ पे एक शानदार आगाज। काशिफ भट्टी बिल्कुल लगता है कि तैयार आए थे, लगा नहीं कि ये उनकी पहली बॉल है। जिस तरह उन्होंने बॉल को मिडल किया, लेकिन उनका जो हदफ है वो बहुत ही मुश्किल है। जरूर इस छक्के को एंजॉय किया होगा उन्होंने। ऐसा लगता है शाह फैसल जैसे जो वो एक्स्ट्रा रन्स दिए गए बलूचिस्तान की फील्डिंग में, जो कैचेस ड्रॉप किए, वो उन्हें हॉन्ट करेंगे, क्योंकि अगर वो कैचेस करते हैं तो इनको 165 170 तक रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए था बलूचिस्तान केपी को। स्लोअर वन, ये बहुत ही चालाक बॉलर हैं, एक हिट खा लेंगे, 2 हिट खा लेंगे, लेकिन ज्यादा नहीं मार सकते आपको। और अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स, ओवर थ्रो पे जल्दी से रन मुकम्मल किया तो 2 रन्स आए इस बॉल ओवर की आखिरी बॉल पे। 16 ओवर्स का इख्तिताम हुआ, 145 पर 7 बलूचिस्तान। शाह फैसल, एक सवाल डेफिनेटली बनता है कि इनफैक्ट सारी टीमों का ही ये सवाल है कि केपी को कैसे रोका जाए, केपी को हराने का क्या तरीका हो सकता है, क्योंकि ये टीम रुकने वाली है नहीं है जिस तरीके की वो क्रिकेट खेल रहे हैं। तो क्या ऐसा किया जाए कि इस टीम को रोका जाए, इनसे जीत हासिल की जाए? ये अच्छा सवाल है और तमाम ही टीमों के कोचेज और मैनेजमेंट जो है वो सोचती होंगी, क्योंकि अगर आप जायजा लें पिछले 3-4 साल का 2019-20 की सीजन से जितने भी टूर्नामेंट्स हुए हैं, वाह क्या जबरदस्त स्ट्रोक है। जब गेंद बल्ले से टकराई तो अंदाजा हो गया कि ये ग्राउंड में रुकने वाली नहीं। यासिर शाह का जोरदार छक्का, ऐसा लग रहा है यासिर आसिफ शाह हैं ये, जिस तरीके से हिट मार रहे हैं। देखिए ऐसे मौके पे तो जब आपने स्विंग करना है और जोरदार स्विंग बल्ले का, और लकी रहे कि दोनों फील्डर्स के दरमियान बॉल गया, प्लेसमेंट शानदार रही, 4 रन हासिल कर लिए, तो अपने आप को की जो फॉर्म है उसको कैश करते हुए यहाँ पे कप्तान यासिर शाह 53 रन 23 बॉलें। एक बार फिर जोरदार शॉट खेलें, सीधा खेलें, फील्डर मौजूद हैं लेकिन रोक नहीं पाएंगे। 4 रन्स, ये प्लेसमेंट कमाल की रही, ज्यादा टाइमिंग नहीं थी लेकिन प्लेसमेंट कमाल की रही। यासिर शाह जारहाना मूड में है और
यहाँ पर कभी भी कोई फील्डर नहीं होता है इस इलाके में। बॉलर के सर के ऊपर से, बल्ले के बीचों बीच से नहीं आई इस मर्तबा, लेकिन अच्छे बैट होते हैं आजकल। और कामरान गुलाम काफ़ी तेज़ फील्डर हैं, लेकिन वो भी बर वक्त नहीं आ सके इस गेंद को रोकने के लिए। 2 गेंदों पर 2 बाउंड्रीज, 14 रन पर ओवर चाहिए। पिछले ओवर में 13 रन आए थे और अब पहली 2 गेंदों पर 8। जो 5वीं बॉलिंग ऑप्शन है केपी की, वो शायद यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं केपी के बैटर्स। तो सवाल पे वापस आते हैं कि केपी की डोमिनेंस को कैसे रोका जाएगा। ये स्लो डिलीवरी थी, बीट हो गए यासिर शाह। जो भी टीमें खेल रही हैं वो ये देख सकती हैं कि केपी का मेथड क्या है, उनकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं। दो रन बनने चाहिए यहाँ। आमिर अजमत की अच्छी फील्डिंग, अच्छी दौड़ लगाई काशिफ भट्टी ने भी। और जो बात केपी की कर रहे थे, जो उनका मेथड है उसको काउंटर करना होगा मुखालिफ टीमों को। और केपी एज ए यूनिट खेलते हैं। यहाँ पे दौड़ लगाई काशिफ ने, उन्होंने अच्छा टर्न किया और कॉल की। लेकिन जो उनकी एक और भी बड़ी स्ट्रेंथ है वो उनकी टीम स्पिरिट है। और उनका जो भी प्लेयर जब रिजर्व से भी टीम में आता है और बेंच से टीम में आता है, वो ऐसा लगता है जैसे इस टीम का हिस्सा है कई सालों से। और जो रोल डेफिनेशन है वो बहुत ही कंफर्म है। ये डोमिनेंस का जिक्र आप कर रहे थे, तो बिल्कुल आपने एक बात तो दुरुस्त कही कि जो स्पिरिट है, ऐसा लगता है कि कोई मसला ही नहीं है टीम में। सब एक दूसरे के लिए खेल रहे हैं, एक दूसरे को बैक करते हैं। और इसी वजह से देखिए 2019 से इनका जो वो अपवर्ड ट्रेंड है वो शुरू हुआ। सेमीफाइनल स्ट्रेच, लेकिन उसके बाद इंप्रूव किया, फिर उसके बाद इन्होंने मुड़ के नहीं देखा है। 3 ट्रॉफीज जीती, फाइनलिस्ट रहे पाकिस्तान कप में, बलूचिस्तान से मैच हारे थे फाइनल। वो एक वाहिद फाइनल मैच था पिछले 2 सीजन्स में जो उन्होंने हारा, बाकी तमाम ही टूर्नामेंट्स का क्लीन स्वीप किया उन्होंने। भट्टी ने खेल दिया है जोरदार शॉट, ये बॉल चला जाएगा स्टैंड्स में। ये कमाल का काउंटर अटैक है इन 2 लेट ऑर्डर बैटर्स की जानिब से, और सरप्राइज कर दिया, शॉक्ड कर दिया यहाँ पे केपी के पूरे कैंप को। 17 ओवर से इख्तिताम हुआ 162 पर 7। जब हम केपी की डोमिनेंस की बात कर रहे हैं तो शायद ये यासिर शाह और काशिफ भट्टी को अच्छी नहीं लग रही ये बातें, और उन्होंने कहा कि आप जरा ठहर जाइए, ये मैच कम से कम अभी खत्म नहीं हुआ। और पिछले 2 ओवर्स में काफी ज्यादा रन बटोरे उन्होंने। 13 रन आए थे 16वें ओवर में और 17 रन आए हैं इस 17वें ओवर में। जो रिक्वायर्ड रन रेट 2 ओवर पहले 14 रन का था, अब वो कम हो के 13.33 पर आ गया। रिक्वायर्ड रन रेट 13.33 की है। ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। जितना लंबा लेके जाएंगे, एक अच्छा ओवर यहाँ से, वैसे तो 3 ओवर्स हैं, अब तो जाना ही होगा, अब तो रन्स बनाने होंगे, मारना ही होगा। और जिस तरीके से बॉल लग रहा है दोनों के बल्ले में, सरप्राइज हो सकते हैं या सरप्राइज कर सकते हैं। तरह पिछले 2 ओवर खेले, बस उसी तरह अगले 3 ओवर खेलने, ज्यादा मुश्किल नहीं। और यहाँ पे पछता रहे होंगे टॉप 3 बैटर्स, क्योंकि पिच अच्छा है बैटिंग के लिए। अगर आप अपने आप को थोड़ा अप्लाई करें, थोड़ा लेट खेलें, तो रन्स अवेलेबल हैं। तो जैसे टॉप 3 बैटर्स हसीबुल्ला, असद शफीक, अब्दुल वाहिद बंगलजई, 10-0-5, वो चीज जरूर हर्ट कर रही होगी यहाँ पे बलूचिस्तान को। जी बिल्कुल, स्कोर बोर्ड के प्रेशर के नीचे आ गए टॉप ऑर्डर। ज्यादा शुरू में ही ज्यादा बड़ी हिटें लगाने चले गए इस विकेट पे, ताकि पिच रिपोर्ट में भी कहा था कि शुरू में बड़ी हिट नहीं लगती, ज्यादा दूर से हिट भी नहीं लगती, थोड़ा वक्त आप गुजार लें तो जरूर शॉटें लगती हैं। अब हमने 200 का हिस्सा पार होते देखा पहली इनिंग्स में। और अब लोअर ऑर्डर से जिस तरह की कॉन्ट्रीब्यूशंस हो रही हैं, हुसैन तलत, हारिस सुहेल, खैर टॉप ऑर्डर के या मिडिल ऑर्डर के बैटर हैं, लेकिन काशिफ भट्टी, इसका मतलब है जो आपने पॉइंट रेस किया वो बिल्कुल सही था कि टॉप ऑर्डर जरूर अपने आप को इस वक्त कोस रहे होंगे। अंपायर खुश नहीं है, शायद जो गेयर है, जो ग्लव्स यासिर शाह ने पहने हैं, उनके कलर से अंपायर खुश नहीं है।
इससे पहले भी हमें देखा था कि लाल रंग के ग्लव्स पहन के आए बैटर आए थे, वो भी चेंज करवाए अंपायर ने, क्योंकि रूल ये है कि या तो आप अपनी टीम के कलर कॉम्बिनेशन के ग्लव्स पहनते हैं या आप नॉर्मल वाइट कलर के ग्लव्स पहनते हैं। ऑल्दो अच्छे बहुत लग रहे हैं यासिर शाह को, सूट कर रहे हैं, लेकिन शायद अगेंस्ट द रूल है तो आपको चेंज करना पड़ेगा। स्टंप माइक से ऐसे आवाज आई जैसे यासिर ने कहा कि मेरे पास यही ग्लव्स हैं। यकीनन ऐसा नहीं होगा, लेकिन जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट है उसको तो जाहिर है फॉलो करना ही होगा। अब क्या कीजिए, ये तो सारे ही ब्लू हैं। अब किसी से बोरो करने पड़ेंगे, उधार लेने होंगे वाइट ग्लव्स यासिर शाह को। लेकिन क्या ये इतना बड़ा इशू है कि जिसकी वजह से खेल को रोका जाए और एक इशू क्रिएट किया जाए? अगर तो ये पहले से प्लेइंग कंडीशंस का हिस्सा है, जो कि मेरा ख्याल है कि बिल्कुल है, तो इसलिए तो फिर ये प्लेयर्स की या मैनेजमेंट की ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्लेयर्स को समटाइम्स इन चीज़ों का नहीं पता होता, लेकिन मैनेजर्स को जो है वो ज़रूर इस चीज़ का इल्म होना चाहिए और वो कम्युनिकेशन होनी चाहिए। यहाँ पे शायद अंपायर आसिफ को भी उनका कलर पसंद आ गया, उन्होंने कहा ठीक है कंटिन्यू कीजिए। 18 बॉलें हैं, 40 रन, रिक्वायर्ड रन रेट 13.33 का। अरशद इकबाल भी खुश नहीं है, अपनी फील्डिंग पोजीशन को मेक श्योर करते हुए। फील्डर जो थर्ड का है वो सर्कल के अंदर है, फाइन लेग भी का फील्डर भी सर्कल के अंदर है, डीप कवर है, लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन का कॉर्नर और स्क्वायर लेग पे भी डीप एक फील्डर मौजूद है। स्विंग। अरशद इकबाल जितने चालाक बॉलर हैं इतने आसानी से हिट नहीं खाएंगे। बिल्कुल, और ये मैच खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के दरमियान है, लेकिन बैटिंग पे अरशद इकबाल, बैटिंग पे यासिर शाह और बॉलिंग पे अरशद इकबाल दोनों सवाबी के हैं। सवाबी बमुकाबला सवाबी की ये मैच अब था, लेकिन अब काशिफ भट्टी आए हैं स्ट्राइक पे। उनका फेवरेट जोन मिड विकेट रहा है, फील्डर है। यहां पे जो ऑन साइड की हिट है वो अगेंस्ट द विंड होगी, ये देखना होगा। इसे खेल दिया शानदार तरीके से। एक बार फिर ये बहुत ही शानदार शॉट, काशिफ भट्टी अपना लॉन्ग हैंडल यूज करते हुए। क्या हम यहाँ पे एक मौजज़ा देख सकते हैं? क्या हम सरप्राइज हो सकते हैं? यहाँ पे इस पार्टनरशिप ने कमाल कर दिया है 32 रन पर। अगेंस्ट द विंड हिट हो या कुछ भी, काशिफ भट्टी की परवाह किए बगैर मूड में है आज। एक बार फिर बल्ले से बहुत अच्छी आवाज आई, काफी दूर जाकर गिरी। अब प्रेशर महसूस कर रहे होंगे अरशद इकबाल जरूर, क्योंकि जब इतना क्लोज हो जाए तो यहां से कुछ भी हो सकता है और प्रेशर दोनों तरफ बराबर का है। एक बार फिर सीधा खेलें, फील्डर मौजूद है वहां पे, एक ही रन बन पाएगा। ये डिफरेंस है, तो फील्डिंग का डिफरेंस हम बात करते हैं, क्योंकि केपी से आपको आसान रन्स नहीं मिलेंगे, फ्रीबीज नहीं मिलेंगी। बिल्कुल, लेकिन अगर आप अरशद इकबाल पे नजर रखें, ये देखें यॉर्कर की कोशिश, लेकिन बिल्कुल जड़ में बॉल नहीं था, इसलिए थोड़ा सा नीचे जाकर उनको एलिवेशन मिल गई। लेकिन जरा सी बात पे अरशद इकबाल जो है वो इरिटेट हो रहे हैं, लगता है कि वो प्रेशर महसूस कर रहे हैं। ओवर के आगाज पे भी आपने देखा कि जो ब्रेक आई उससे वो काफी इरिटेट हुए, अभी अपने फील्डर से हुए। ये चीज इस चीज को जाहिर कर रही है कि कहीं ना कहीं नर्व्स आ गए हैं इस वक्त। केपी की जो बड़ा स्मूथ और स्लिक यूनिट है वो भी प्रेशर को महसूस कर रहे हैं कहीं ना कहीं। एक बार फिर बड़ा हिट मारना चाहते थे, तो हम क्या ये कह सकते हैं कि अगर केपी को अंडर प्रेशर लाना है तो मैच करीब लेके जाइए। एकदम अगर आप विकेट्स गवा देंगे तो आसानी से वो डोमिनेट करते हैं, लेकिन आप जितना करीब उनके स्कोर के जाएंगे, क्या ये कहना दुरुस्त होगा? जी बिल्कुल, कोई भी टीम उसी तरह प्रेशर में आएगी जितना मैच नजदीक जाएगा। और जब आपने इस तरह डोमिनेट किया हो पूरा दिन, जब बिल्कुल आखिर में आपको ऐसा लगे कि शायद मैच आपके हाथ से कहीं निकल ना जाए, तो वो प्रेशर जो है वो आपके आसान खता करने के लिए काफी होता है। यहाँ पे कोई खता ना हो जाए बलूचिस्तान से, क्योंकि ये आखिरी पार्टनरशिप है। और बहुत शानदार काशिफ भट्टी फिर एक बार जोरदार शॉट मारना चाहते थे। इसके बाद जो मैच खेला जाएगा वो सिंध और सदर्न पंजाब का है। शाह फैसल इस बॉल के बाद बात करेंगे, अच्छी हार्ड लेंथ हिट की।
तो देख रहे होंगे काफी गौर से, क्योंकि अच्छी बैटिंग पिच है और दोनों टीमें मैचेस हार के मैच खेल रहे हैं, तो बहुत इंटरेस्टिंग गेम होने वाला है सिंध और सदर्न पंजाब का। जी बिल्कुल, क्योंकि सिंध की टीम पिछले 3 मैचेस हार के आ रही है। हाईएस्ट रन चेजेस हैं T20 की हिस्ट्री में, 217 यहाँ रावलपिंडी में ही चेज किए थे। सदर्न पंजाब ने सिंध के खिलाफ 212 भी उन्होंने ही चेज किए थे। और लाहौर ईगल्स, कराची डॉल्फिन्स, नॉर्दर्न, सेंट्रल पंजाब, मौका है बलोचिस्तान के पास तारीख बनाने का। ये बेहतरीन बॉलिंग है, इस तरह की बॉलें ज्यादा डालनी होंगी। 18 ओवर्स का इख्तिताम हुआ, 172 पर 7 बलोचिस्तान। एक बार फिर नजर डालते हैं जो चेज हुए हैं नेशनल T20 कप है। और सबसे अच्छी बात है कि 2 बार रावलपिंडी में रन्स चेज हुए हैं 200 से ऊपर, ये आसान बात नहीं है। और एक खुशाइन बात यह है कि हम इसके बाद जो नेक्स्ट लेग है वो है मुल्तान में, वहां पे भी हाई स्कोरिंग गेम चेज हुए हैं, तो ये खुशाइन बात होगी बैटर्स के लिए कि पिचेस बैटिंग फ्रेंडली होंगी। अच्छी लिस्ट है ये। तो बात हम कह रहे थे सिंध और सदर्न पंजाब के माबैन जो अगला मैच खेला जाएगा, अच्छा मोमेंटम हासिल किया सिंध ने, पहले 2 मैचेस जीते, फिर जाने क्या हो गया, 3 मैचेस हार गए, क्या वजह लगती है? बिल्कुल, सिंध की टीम मैदान में आ चुकी है, थोड़ी सी उनकी बैटिंग में मसला आ रहा है, जो जहां पे वो इनिंग्स क्लोज कर रहे हैं वहां पे। और पिछले मैच में तो अच्छी मूवमेंट के बावजूद पावर प्ले में बहुत ज्यादा रन्स करवा दिए सोहेल खान और हमजा ने। बैकफुट पे जाके खेले हैं और फील्डर मौजूद है। ओह, कोशिश शानदार रही और ओवर रन कर गए। आमिर अजमत का शुमार पाकिस्तान के फिटेस्ट क्रिकेटर्स में से होता है, एक यंगस्टर, और एफर्ट अच्छी थी। अपोलोजाइज करते हुए कि शायद वो एक्स्ट्रा रन नहीं बनना चाहिए था। पहल तो बहुत ही अच्छी कोशिश थी, जिस तरह उन्होंने बॉल को अपने आगे गिराया, लेकिन जब वापस बॉल उठाने के लिए गए तो बॉल उठाए बगैर ही आगे को भाग पड़े, इस वजह से 1 रन दिया। इस चीज की उन्होंने है माफी मांगी, अभी भी अपने टीममेट से शर्मिंदा हैं, लेकिन अच्छी कोशिश थी ये कहना होगा। हवा में खेलें, फील्डर मौजूद है, खालिद उस्मान आसानी से कैच ले लेंगे और इनिंग का इख्तिताम हुआ। काशिफ भट्टी का ज्यादा चॉइस मौजूद नहीं थी, बड़े रन्स के लिए जाना था, बड़े छक्कों के लिए जाना था और अपनी विकेट गवा बैठे। विकेट तो जरूर गंवाई, लेकिन दाद देनी होगी काशिफ भट्टी को। उन्होंने फाइट किया, हलचल मचाई केपी के कैंप में और कोशिश करते करते ही अपनी विकेट का नुकसान उठा बैठे। काफी सेल्फलेस इनिंग्स थी, लेकिन बलोचिस्तान को इस कंट्रीब्यूशन से हौसला आया होगा कि उनकी बैटिंग काफी डीप है और वो खेल सकते हैं। 24 रन बनाए भट्टी ने, 174 पर 8। अगर बात जुनैद खान तक आ गई है तो फिर ना ही समझें। यासिर के हाथ में इस वक्त कमान आई है। कमाल का शॉट है, लेकिन फील्डर मौजूद हैं और सीधा उनके हाथ में, और ये केपी के फील्डर्स कैच नहीं छोड़ते हैं। ये कमाल का फील्डिंग यूनिट है केपी का, बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग, शॉट एग्जीक्यूट सही हुआ लेकिन उस तरीके से एलिवेशन हासिल नहीं हुई और सीधा कैच दे बैठे सर्वर को। चेहरों पे मुस्कुराहटें हैं, वो इस चीज को भी जतला रही हैं कि कितना वो एंजॉय करते हैं फील्डिंग एफर्ट को। यासिर ने कोशिश बहुत शानदार की, लेकिन इमरान अब हैट्रिक पर होंगे। 2 बॉलों पे 2 विकेटें, दोनों सेट बैटर्स को उन्होंने चलता किया। यासिर शाह ने अपने करियर का सबसे ज्यादा 44 रन बनाए, 174 पर 9। जुनैद खान अपनी बॉलिंग की वजह से मशहूर हैं। आपने कहा जुनैद खान का आना, और जुनैद खान का आना हो गया। क्या कहते हैं अब तो जो सारी नजरें हैं वो इमरान खान पे हैं, क्या अपनी हैट्रिक कर पाएंगे? क्योंकि हैट्रिक रेडी है, 2 विकेट्स हासिल किए हैं 2 बॉलों पे,
जुनैद खान, ओह बहुत करीबी मामला था ये, डिसअपॉइंटेड जरूर होंगे, हंस रहे हैं। ये जिस तरीके से यासिर शाह ने विकेट गवाई, पिक अच्छा कर लिया था यॉर्कर लेंथ को, लेकिन अनलकी रहे कि सीधा बॉल फील्डर के हाथ में चला गया। दाद देते हुए इमरान खान सीनियर, क्योंकि अच्छी इनिंग रही और शायद वही शायद फैसल अगर ऊपर से रन्स हुए होते तो अब सिचुएशन शायद थोड़ी डिफरेंट होती। गेम्स में ज्यादा मार्जिन नहीं है दोनों टीमों के दरमियान, जब भी मैचेस हुए काफी क्लोज मैचेस हुए। इस बार बॉल कर दिया, काश ये बॉल एक बॉल पहले हुआ होता तो हैट्रिक हो जाती, लेकिन फिर भी बहुत ही शानदार यहाँ पे बॉलिंग इमरान खान जूनियर की जानिब से। उनकी वेरिएशन मशहूर है पूरे पाकिस्तान में और यहाँ पे उसी वेरिएशन का इस्तेमाल करते हुए और अपने लिए एक और विकेट हासिल करते हुए, और इस मैच को केपी ने जीत लिया है 27 रन से। केपी बिल्कुल बजा तौर पे हकदार है इस जीत की। मैच में डोमिनेट किया मुकम्मल तौर पे इमरान खान, बैक ऑफ द हैंड एक मरतबा फिर। जुनैद खान के पास ज्यादा कोई ऑप्शन नहीं थे, इसलिए मैच का खात्मा हुआ। बलोचिस्तान की टीम जरूर अपनी गलतियों पे नजरसानी करेगी। किंगडम वैली नेशनल T20 का ये मैच खैबर पख्तूनख्वा ने जीत लिया 27 रन से। बहुत ही प्राउड टीम है ये खैबर पख्तूनख्वा की। 5 में से 5 मैचेस इस टूर्नामेंट में ये जीत लिए हैं और ऐसा लग रहा है कि कोई भी टीम इनके करीब भी नहीं आ रही है। तो परेशानियां डेफिनेटली बाकी टीम्स के लिए हैं कि कैसे इनको हराया जाए, क्योंकि इतना फॉर्मिडेबल यूनिट है ये, जानदार यूनिट है, तगड़े बॉयज हैं, एक दूसरे के लिए खेलते हैं। जैसे आपने कहा स्पिरिट बहुत शानदार है, एफर्ट बहुत कमाल की करते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे कोई मसला ही नहीं है इनकी टीम में। हाफ स्टेज टूर्नामेंट में तकरीबन आया चाहती है। बैटिंग कार्ड अगर आप देखें बलोचिस्तान का, तो जो टॉप ऑर्डर की जो फेलियर थी उसने ही उनको काफी पीछे धकेल दिया था इस मैच में। हसीबुल्ला, असद शफीक, अब्दुल वाहिद बंगलजई, शान मसूद भी आज बिल्कुल रिदम में नजर नहीं आए। हारिस सुहेल ने कुछ झलक दिखलाई, सिर्फ 19 गेंदों पर 39 रन बनाए, अच्छे दिख रहे थे वो, लेकिन लोअर ऑर्डर्स की जो कंट्रीब्यूशन थी उन्होंने इस मजमूए को कुछ काबिल इज्जत बना दिया। 44 रन बनाए कप्तान यासिर शाह ने, 174 ऑल आउट। जब आपकी बैटिंग 200 रन कर लेती है तो बॉलिंग थोड़ी आसान हो जाती है। 2 विकेट हासिल किए इमरान खान सीनियर ने, 1 विकेट हासिल किया अरशद इकबाल ने, 2 विकेट हासिल किए सरवर ने, 1 विकेट हासिल की खालिद उस्मान ने, लेकिन जो स्टार रहे वो रहे इमरान खान जूनियर। 4 विकेट हासिल किए 28 रन देकर और रिस्ट्रिक्ट कर दिया बलूचिस्तान को सिर्फ 174 रन पर और अपनी टीम को मैच जितवाया 27 रन से। अगर इस इनिंग की हाइलाइट्स की बात करें तो असद शफीक और हसीबुल्ला ने इनिंग का आगाज किया था, आगाज अच्छा नहीं था और बहुत ही शानदार कैच लेके हारिस ने उनकी इनिंग का इख्तिताम किया। ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे क्योंकि रन्स के लिए जाना था, एक बड़ा स्कोर चेस कर रहे थे। आगाज अच्छा था, हसीबुल्ला ने बैटिंग अच्छी, शॉट्स अच्छे मारे, दोनों ने ही अटैक किया आते ही, लेकिन केपी की जैसी साइड है कैचेस नहीं छोड़ते हैं, बहुत शानदार फील्डिंग करते हैं और प्रेशर डेफिनेटली बढ़ता रहता है बैटर्स पे। हसीबुल्ला को रन्स बनाने थे तो रन्स के लिए अपने विकेट्स गवाते रहे। हारिस सोहेल की इनिंग अच्छी रही, झलक दिखलाई उन्होंने कि उनके अंदर अभी भी बहुत ज़्यादा स्किल मौजूद है, टैलेंट मौजूद है। बहुत ही कमाल की शॉट्स मारे, दोनों तरफ ग्राउंड से खेलते रहे, बहुत ही लेजी एलिगेंस देखने को हमें मिली। ये कमाल का शॉट था, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेल के 6 रन हासिल किए और उसके बाद ऐसा लगा जैसे शायद हारिस सोहेल का दिन हो सकता है क्योंकि एक हाथ से भी छक्के लग रहे थे। टाइम बहुत कमाल का करते हैं और फिर पार्ट टाइम बॉलर से अपने विकेट गवा बैठे और उसके बाद ऐसा लगा यके बाद दीगरे विकेट्स गिरते चले गए और प्रेशर बढ़ता चला गया बलूचिस्तान पे। अमाद भट्ट से एक्सपेक्टेड था लेकिन वो भी अपने विकेट जल्दी में गवा बैठे। लेट और लोअर ऑर्डर में कप्तान यासिर शाह, उन्होंने मुजाहमत की, पहले पहलू ने किस्मत का साथ हासिल रहा। हुसैन तलत ने भी कोशिश की। यासिर शाह ने आज अपने करियर का सबसे ज्यादा स्कोर बनाया T20 क्रिकेट में। बल्ला घुमाते रहे, कुछ बीच में लगी और कुछ एजेस पर। हुसैन तलत जब भी खेलेंगे आपको इम्प्रोवाइजेशन देखने को मिलेगी। ये बल्ले के बीचों बीच से आई थी। हुसैन तलत भी इमरान खान के जो
मिस्ट्री स्लो डिलीवरी है, उसके सामने विकेट खो बैठे। काशिफ भट्टी ने कुछ हलचल जरूर मचाई और ऐसा लगा कि जब 3 ओवर में 40 रह गए थे शायद कोई मौजज़ा हो जाए। इन्हीं स्ट्रोक्स की बदौलत ऐसा फील हुआ था, लेकिन फिर इमरान खान जूनियर अपनी टीम की मदद को आए। 2 बॉलों पे उन्होंने 2 खिलाड़ियों को आउट किया, दोनों सेट बैटर्स को चलता किया यासिर शाह, और उसके बाद हैट्रिक मिस कर दी। लेकिन जुनेद जो है वो अपनी विकेट खो बैठे और इस तरह बलोचिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा ने जीत मुकम्मल की और फर्क रहा 27 रन का। बिल्कुल मुबारक के हकदार हैं खैबर पख्तूनख्वा की ये टीम। बहुत ही शानदार टीम है, बहुत ही शानदार यूनिट है ये खैबर पख्तूनख्वा का। मैच समरी पे एक नज़र डालते हैं। 201 रन बनाए खैबर पख्तूनख्वा ने। टॉस जीतने के बाद 57 रन की कामरान गुलाम ने इंपॉर्टेंट इनिंग खेली। साहबजादा फरहान भी शानदार रहे। हारिस ने 2 विकेट्स हासिल किए और उसके जवाब में बलोचिस्तान की टीम सिर्फ 174 रन बना सकी। कप्तान यासिर शाह ने 44 रन बनाए, हारिस ने 39 रन बनाए और 4 विकेट्स हासिल की यंग इमरान ने, और खैबर पख्तूनख्वा ने यह मैच 27 रन से जीत लिया। पॉइंट्स टेबल पे एक नजर डाल लेते हैं। खैबर पख्तूनख्वा बदस्तूर टॉप पे मौजूद हैं, 5 में से 5। बलोचिस्तान नंबर 2 पे हैं। ATF सदर्न पंजाब और सिंध जो अगली टीमें हैं उनका मैच अभी नेक्स्ट वाला है। नॉर्दर्न और सेंट्रल पंजाब एंड पे हैं। यहाँ पे रावलपिंडी क्रिकेट ग्राउंड में एक वक्त है ब्रेक का। जब हम वापस आएंगे तो आपके लिए तैयार होगी प्रेजेंटेशन।
Hello and welcome to the post-match presentation of match 15. This was between KP and Balochistan. A high-scoring game. Good fight given in the end, but the margin of victory for KP was still a lot. 27 runs is big in T20. Now, before I call upon the player of the match, let me welcome our guest, Colonel Usman Anwari, Senior Manager, Anti-Corruption Pakistan Cricket Board. Thank you for joining us. And now, taking our attention to the Kingdom Valley Player of the Match, who will receive the trophy and 25,000 rupees cash award. And that is for Mohammad Sarwar Afridi for his brilliant 38 of just 11 balls and 2 wickets for 43 runs. Superb performance. He helped KP get to that 200 mark with that brilliant knock of 38 of just 11. He'll receive his award and the trophy from Colonel Usman Anwari. We'll have a quick word with Sarwar. Sarwar, शानदार performance रही. 201 आपके कप्तान ने तो 160 का था टॉस के टाइम पे, लेकिन कहाँ पे जब पहुँचे आप बैटिंग के लिए तो आपको लगा कि यहाँ तो ज़्यादा बन सकते हैं? देखिए, हमारा प्लान यही था कि 180-190 तक अगर हो जाए तो फिर बेस्ट होगा, लेकिन जब विकेट हमने देख ली तो कोच ने कह दिया रफत भाई ने कि जितना ज़्यादा कर सकते हो तो ट्राई कर लो, और यही था. जब मैच चला गया तो एक बॉल दो देख के पता चल गया कि इस पे तो हर शॉट लग रहा है, और मैंने ट्राई की और शुक्र है 202 का टारगेट बड़ा लग गया जी. जिस नंबर पे आप बैटिंग करते हैं आसान नहीं होता है, क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता सेटल होने का, तो किस तरह से अपनी तैयारी करते हैं जब आप जाते हैं अंदर? देखिए जी, मैं तो एक मेरा ये तो स्ट्रेंथ है पावर हिटिंग, और इस पे मैंने काम किया हुआ है. मुझे पता होता है कि मुझे इस नंबर पे आना होता है, तो मैंने इसके लिए बहुत ज़्यादा तैयारी करके आ चुका हूँ इस यहाँ पे जी. चलिए, बहुत बहुत मुबारक हो, एंजॉय किया आपकी बैटिंग. थैंक यू जी, थैंक यू. Mohammad Sarwar Afridi, the player of the match. Now I'll invite Yasir Shah, the captain of Balochistan, to have a quick word. यासिर, वही बात है जो हमने कल के मैचेस में देखी कि आखिरी 5 ओवर्स की जो बॉलिंग है वो थोड़ी जो है कॉस्ट कर जाती है मैच. हाँ, डेफिनेटली अगर आप देखें तो हमारे आखिरी 3 ओवर में ज़्यादा रन्स हुए, और सिर्फ डिफरेंस एक चीज़ का आया हुआ है, फील्डिंग का. क्योंकि फील्डिंग में हमने फील्डिंग बहुत गंदी फील्डिंग की और उनसे कैचेस भी ड्रॉप, हम अच्छा कर सकते थे, इससे अच्छा कर सकते, तो हमारे ये 20-25 रन जो हमारे ज़्यादा हुए हैं वो फील्डिंग की वजह से हुए हैं. अच्छा, अगर मैं 10 ओवर्स की बात करूं आपकी बैटिंग की, जब आप 10 ओवर पहुंचे तो आपके केपी के स्कोर में कोई डिफरेंस नहीं था, सिर्फ विकेटें 6 गिर गई थी, तो क्या आपने प्लानिंग की थी, हिकमत अमली क्या थी चेज़ में? ये कि कोशिश यही कर रहे थे कि मॉडर्न क्रिकेट खेलें, और मतलब इंटेंट हमारा ये है कि चेज़ करने जाएं. अगर हम जो भी मेरा हमारा ये इंटेंट है, अगर हम पहले बैटिंग भी करते तो हमारा इंटेंट ये होता है कि हम 200 रन्स करें, और अगर हम 200 रन्स है तो उसको चेज़ करने के लिए वो इंटेंट हो. जिस तरह हमारे प्लेयर्स खेले, हमारे बैट्समैन खेले, बहुत अच्छा खेलें, और ये है कि विकेटें जल्दी गिर गई है. हमारे जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनको एक प्लेयर को लेके जाना था आखिर में. आपने बैटिंग की, एंड में 27 रन का मार्जिन रह गया एंड में, लेकिन शायद इससे काफ़ी चीज़ें आइडिया हो गया होगा कि रन्स थे इस पिच पर, शायद थोड़ा जल्दी हो गई और 6 विकेट जल्दी गिर गए. ये विकेट अच्छा था बैटिंग के लिए, और शॉट लग रहे थे उस पर. ये कि बस हमारे पास विकेटें नहीं थे आखिर में. उन्हें 2 ओवर में 27 रन इतने ज़्यादा नहीं थे, लेकिन हमारे पास बैट्समैन नहीं थे आखिर में. चलिए, कोई बात नहीं, अगले मैच के लिए आपके लिए गुड लक एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग. थैंक यू. यासिर शाह, कैप्टन ऑफ बलूचिस्तान. नाउ खालिद उस्मान, कैप्टन ऑफ केपी. आपकी दोपहर की और शाम की टीम की परफॉर्मेंस तो देख लिया, अब अंडर लाइट्स देखेंगे कि आप लोग कैसे परफॉर्म करते हैं. लेकिन 201, आपने 160 सोचा था या 160 के आसपास, ये 200 का आप सरप्राइज थे कि इतने रन हैं? नहीं जी, बिल्कुल ऐसे ही था कि विकेट अच्छा था, बॉल आ रहा था बल्ले में, तो फिर बाद में हमने मैसेज दिया लड़कों को कि थोड़ा सा हाई स्कोरिंग मैच होगा तो टारगेट ज़रा ऊपर रखे 190 तक. तो वही प्लान किया और वही एग्जीक्यूट किया और उस पर अमल किया, तो टारगेट अच्छा हुआ हमारा. एज अ कैप्टन क्या डिमांड रहती है आपकी? मैं सोच रहा था अभी कि जब आपने देखा कि एंड में थोड़े रन बनने शुरू हो गए ऑपोजिशन के, आपने सोचा था कि क्लोज होना चाहिए गेम, यहाँ तक कैसे आए? नहीं, क्लोज तो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ऊपर से हमने आउट किए थे, 80 पे 6 आउट थे उनके. लेकिन बाद में T20 क्रिकेट है, आपको कोई पता नहीं कि कब कोई बैट्समैन खड़ा हो जाए. जैसे यासर और उसने पार्टनरशिप लगाई तो मैच इवन स्टीवन हो गया था बाद में, लेकिन एंड में आपके नर्व्स कंट्रोल हो तो रिज़ल्ट अच्छा होता है. फिर आपके पास एक ऐसा ऑप्शन है जैसे साहिबजादा फरहान और आई थिंक हारिस के अलावा सभी बॉलिंग कर लेते हैं, तो जी बिल्कुल. ऑप्शन बड़े अच्छे हैं. ज़्यादा भी कर लेते हैं, इससे ज़्यादा भी वो भी कर लेते हैं. चलिए, जी जी, कीपिंग भी कर लेते हैं वो. तो ये अच्छी चीज़ है कप्तान के लिए कि उसके पास इतने ऑप्शंस हो, आप सरफेस को देख के या मैच सिचुएशन देख के इस्तेमाल कर सकते हैं. आज सर्वर ने 2 विकेटें ली. जी जी बिल्कुल. सर्वर थ्रू आउट जो सेकंड 11 में मैं खेला था तो उस टाइम भी ये 4-4 ओवर करता था T20 में, तो आइडिया था, मुझे पता था कि ये कर सकता है. और ऊपर से इमरान खान जूनियर जो है बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, अर्शिद कर रहा है,
और सारी टीम एफर्ट है। आप अगर देख लें हमारी टीम को तो 5 मैचेस में 5 डिफरेंट मैन ऑफ द मैच हुए, तो टीम गेम है हमारी और बस यही एक कैप्टन के लिए अच्छी बात है। चलिए 5 में से 5 पिंडी की लेग खत्म हुई। गुड लक कहते हैं आपको मुल्तान के लिए। थैंक यू। Khalid Usman, captain of KP, and that is all from the presentation. The action continues at Kingdom Valley National T20 Cup. Sindh will take on ATS Southern Punjab for match 16. We'll join you with the live action 1:40 live from Pindi Stadium.